आई वॉज डूइंग IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस BTech 83 to 87. उस टाइम सिविल सर्विस का काफ़ी था, so I randomly filled up the form and frankly before joining IAS I had no clue what is IAS. DigiLocker. So can you take us back? What was the need to do this and ये आपको idea कहाँ से आया? At that time I was IT Secretary of Maharashtra. 2014 when new government came in Delhi, मोदी जी was always saying कि लास्ट माइल इजी करना है. तो जो UID फेम के RS शर्मा जी थे वो दिल्ली में IT सेक्रेटरी थे मेटी में. उनका फ़ोन आया एक दिन, कहते राजेश तेरा लॉकर चुरा लूँ. मैंने कहा सर चुराना है क्या, मैं आपके पास भेजता हूँ. आई एम वेरी हैप्पी कि आप इंडिया में यूज़ करना चाहते हो. बेस्ड ऑन बायोमेट्रिक डीडुप्लीकेशन आधार बना देश में. सो दैट इज़ अ फर्स्ट डिजिटल ब्लॉक. बिग वन वाज देन जनधन एंड UPI. आपका बैंक अकाउंट है, पेमेंट सिस्टम्स हैं, पेमेंट गेटवेज हैं और UPIs luckily even today free for the citizens. So that simplified the payment layer. So we have a Viksit Maharashtra 2047 plan, a Viksit Maharashtra 2030 plan. Gadchiroli is becoming a steel city of the country. For example, right now in Gadchiroli, Naxalism is over. We are saturating the villages with schemes and more than 1.5 lakh crore of private investment is already locked in. Today with us we have Shri Rajesh Agarwal, a 1989 batch IAS officer from the Maharashtra cadre. He is currently serving as the Chief Secretary of the state of Maharashtra. In this episode of Sushasan, we will be discussing about the profound impact of technology in governance through case studies such as DigiLocker, election management and more. Do watch out for this episode of Sushasan. A very warm welcome Rajesh ji to this episode of Sushasan. It's a pleasure having you with us today. एंड यहाँ मुंबई में आकर के मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बैठ करके टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर पा रहा हूँ. इन दिस एपिसोड व्हाट विल बी डिस्कसिंग इज टेक्नोलॉजी एज द प्राइम लीवर एंड उसके डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस, राइट? टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ सर्विस डिलीवरी, टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस, टेक्नोलॉजी इन टर्म्स एंड ऑल्सो द फ्लिप साइड ऑफ टू मच टेक्नोलॉजी, राइट? बिफोर वी गेट इनटू ऑल ऑफ दैट, पहली बात मैं आज समझना चाहूँगा कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू जॉइन द सिविल सर्विसेज? Actually, that even I have not understood till now. I guess it was very random. So I was doing IIT Delhi Computer Science BTech 83 to 87. So during 86, lot of my batchmates, practically 90% plus of them started applying for MTech abroad. I checked with my dad who was lecturer in Jalandhar. So he said कि यार कोई नहीं गया बाहर, तुम जाके क्या करोगे? फिर इंडिया में रह गए. तो then उस टाइम सिविल सर्विस का काफ़ी था. सो आई रैंडमली फिल्ड अप द फॉर्म एंड फ्रैंकली बिफोर जॉइनिंग IAS आई हैड नो क्लू व्हाट इज IAS और व्हाट इज सिविल सर्विस. सो मैनी टाइम्स मेजर डिसीजंस इन लाइफ आर एक्चुअली क्वाइट रैंडम. राइट. आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग कि बहुत बार वही होता है कि इफ यू चेज वन गोल टू मच, समटाइम्स इट जस्ट रन्स अवे फ्रॉम यू. सो समटाइम्स इट इज ऑल्सो फाइन टू जस्ट go for a specific goal which you may not have initially started with, and you may just end up with it essentially. Sometimes God is planning for you. Yeah, exactly. So you can be carefree in a sense. बिल्कुल. If we talk about your early career days, different postings आपकी रही हैं, अगर आप बता सकें कि कोई ऐसा मोमेंट रहा जहाँ पे आपने देखा कि yes, technology can make things happen, because that's been one of the core themes that you have been a driver of in governance. So वो कौन से ऐसे एक दो मोमेंट्स रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग्स में जहाँ पे आपने एक्चुअली टेक्नोलॉजी का यूज़ देखा? So technologies these days we do associate only with IT and AI. Yeah. But टेक्नोलॉजी तो हर चीज़ में है. सिविल इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल में है. So boats कैसी हैं? My first posting was on coastal. So one would see lot of kind of boats and new kind of engines and correct. I was interested in that. And wherever I have gone, I like to go to a lot of manufacturing plants and so on. So you see a lot of technology and then you see where it can be used. For example, even in Anganwadi, dry food technology. So how you can make dry food more tasty, more nutritious, right, more long lasting. So even that is technological solution. Right. But computer का पहला use, I was in Jalgaon Zilla Parishad. जी. तो वहाँ पे very simple thing, मतलब 10,000 टीचर्स हैं. हाँ. उनको PF GPF खुद का पैसा निकालने में 4-5 महीने जाते थे. ओके. तालुका से ज़िले में फाइल आती थी, ज़िले में रजिस्टर थे. 22 people were maintaining GPF of 10,000 टीचर्स. ओके. सो उससे वो मैच करते थे कि कितना बैलेंस है और क्या है.
सो वन वाज वी डिसेंट्रलाइज कि 5,000 रुपये तक तालुका लेवल पे दे सकते हैं. राइट. सो आई बिलीव डिसेंट्रलाइजेशन इज टू बी डन फर्स्ट, देन टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन लेके आए. तो उस टाइम टर्मिनल सिस्टम होता था कि एक टर्मिनल ले लो, 4-5 क्लाइंट्स लगा दो उस पर. सो वी कंप्यूटराइज दैट डेटा सो दैट एवरी मंथ यू वुड जस्ट पुट ए डेल्टा की कंट्रीब्यूशन कितनी आई है. जो 28 पीपल थे या 22 पीपल थे हेडक्वार्टर में, दैट रिड्यूस टू 2 पीपल. और वो 2 ने भी मुझे 3-4 महीने बाद बताया, कहते सर हम खाली बैठते हैं, आखिरी 3-4 दिन काम होता है कि बाकी दिन और कोई काम दे दो. सो इट वाज टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली रिड्यूस्ड मैन पावर, बट मच मोर देन दैट जो टीचर्स थे उनको ड्यू टू दिस, क्योंकि अपडेट होता था, हमने कहा कि अब 5,000 से ऊपर भी आप दे सकते हो. वी इंक्रीज दोज लिमिट्स. राइट. So basically it simplifies stuff and makes things faster. आई थिंक फ्रिक्शन भी कम होता है एंड देन आपका इंटरफेस कम होता है, तो करप्शन एंड अदर थिंग्स के भी रिडक्शन हो सकता है. Absolutely, absolutely. जी जी. सो इफ यू टॉक अबाउट सो इनिशियल फेज 1990s में आप बता रहे हैं वही कि टेक्नोलॉजी नाउ इज ऑब्वियसली एसोसिएटेड विद एआई एंड डीप टेक्नोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट, बट इनिशियली इट वाज डिजिटलाइजेशन एंड कंप्यूटर बेस्ड काइंड ऑफ गवर्नेंस को इनेबल करना. What was that initial change management like in the minds of the bureaucracy at the grassroots level? उनको तो ये सब आदत ही नहीं है उसको अपने. सो अगर आप बता सकें कि how was it taken and how did you enable that जहाँ जहाँ आप गए वहाँ पर और adoption बढ़े टेक्नोलॉजी का? देखो, forcing technology down the throat of citizens or your staff, that creates resistance. If you can quickly showcase कि यार इससे फायदा हो रहा है, आपके एम्प्लॉयज़ को भी फायदा हो रहा है, their time effort is being saved, एंड सिटीज़न को भी फ़ायदा हो रहा है, आई थिंक दैट्स अ रियल टेस्ट. थोड़ा सा रेजिस्टेंस जहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, थोड़ा पैसा बनाने वाली बात होती है, सम एलिमेंट्स आर देयर, तो हल्का फुल्का रेजिस्टेंस आता है. नाउ आई थिंक स्पेशली न्यू जनरेशन, न्यू स्टाफ, द जेन ज़ी, दोज़ हु हैव स्टार्टेड जॉइनिंग गवर्नमेंट आल्सो, राइट, एंड दे हैव ग्रोन इन अ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड. करेक्ट. टेक्नोलॉजी चाहे आईटी की हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग की हो, चाहे और कोई मैन्युफैक्चरिंग हो, नाउ वी डोंट सी एनी रेजिस्टेंस. सो आपने बताया कि भाई आप आईआईटी दिल्ली से पढ़े थे एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपने करी है, तो यू हैव टोटली एम्बेडेड इनटू द टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स. हाउ डिड दैट अफेक्ट योर डिसीजन मेकिंग, योर थॉट प्रोसेस वंस यू जॉइन द सिविल सर्विसेज, एंड दोनों चीज़ों को आपने कैसे इंटीग्रेट करके आगे बढ़े? आई थिंक व्हाट आईआईटी और एनी इंजीनियरिंग कोर्स टेल्स यू is to think systematically. पहले इनपुट देखो, आउटपुट देखो, कंस्ट्रेंट्स क्या है, एंड देन ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट. बिल्कुल बिल्कुल. आप उसी एंगल से सोचते हो. हाँ. कोई भी चीज़ है, यू लुक एट इनपुट्स और कंस्ट्रेंट्स, राइट, कि हम चाहते क्या है एंड हाउ टू अचीव दैट इन अ सिंपल ऑप्टिमल फैशन. सो वो एक जो थिंकिंग है, लाइक ए फ्लो चार्ट थिंकिंग, दैट हेल्प्स एवरीवेयर मोर देन द टेक्नोलॉजी पार्ट पर से. Understood. And frankly, I have seen many, for example, IT secretaries in states also, who are from IITs and they have not done well. And those who are from arts background, they have done actually better even as IT secretaries. Or, for example, many health secretaries in the country, the best ones might not be doctors. It's just 2 things. One is systematic thinking, and second is empathy for the whole set of stakeholders. So essentially, the technical know-how may not be as useful, but the kind of functional skills, the kind of the blend of mind, the kind of approach that you take to problem statements is what you are saying. Absolutely. Determines. Absolutely. Yeah. Now let's dig deeper into one of the interventions that is very, very interesting when I was researching. That was that obviously everyone has heard about DigiLocker. राइट. डिजिटल लॉकर वी नो इज यू नो लोग अपने ऐप पे डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर दे कैन कीप अ ट्रैक ऑफ अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. बहुत बार हमने देखा है कि ई साइन होकर के भी वहाँ पर आपके सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे मार्कशीट्स हैं, ड्राइवर लाइसेंस, सब अवेलेबल हो जाता है. बट द इंटरेस्टिंग स्टोरी इज दैट इवन बिफोर द नेशनल लेवल डिजिटल लॉकर वॉज क्रिएटेड, right, you got something created for the state of Maharashtra, and this was I think 1.5 years prior to the real launch of the national level DigiLocker. So can you take us back, what was the need to do this and ये आपको idea कहाँ से आया? At that time I was IT secretary of Maharashtra और हम आधार तो कर ही रहे थे 2009-10 से. So in 2014 when new government came in Delhi, Modi ji came as PM. So initial days of that government were quite gung-ho and technology driven, and कि last mile को मोदी जी was always saying कि last mile easy करना है. Correct.
तो उसमें एक चीज़ थी कि लोगों को कम से कम चक्कर मारने पड़े, तो क्योंकि हम आधार में भी काम कर रहे थे, थोड़ा सा सेंट्रल डेटाबेस की भी बात कर रहे थे, तो वन वाज कि हम वही चीज़ लोगों से बार बार क्यों पूछते हैं। अगर किसी ने अपना BPL का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट या लेटर से 10th का सर्टिफिकेट भी जमा कर दिया सरकार के पास, वो सरकार बार बार ना मांगे। राइट। दूसरा था कि जो सरकार के एक विंग के पास है, दूसरा विंग ना मांगे। अगर रेवेन्यू के पास 7/12 है, लैंड टाइटल है, तो बैंक वाले ने लोन देना, वो क्यों मांगे इससे, और किसी स्कीम में तो क्यों मांगे। ये बंदा सिर्फ अपना सर्वे नंबर लिखे और बाकी सब बिल्कुल डेटाबेस से आए। और उस टाइम तक लकीली डेटाबेसेस काफ़ी बनने चालू हो गए थे। और दूसरा, आई वाज पर्सनली यूजिंग ड्रॉपबॉक्स काइंड ऑफ थिंग, एंड गूगल ड्राइव उस टाइम मैं कम यूज़ करता था। तो दिमाग में आया कि एक ड्रॉपबॉक्स टाइप हम सिटीज़न के लिए दे दें, तो जिसमें वो अपने सर्टिफिकेट डालता जाए और जिसमें भी चाहिए वो लोग उससे उठाएं। तो उसमें इंटरेस्टिंग है कि व्हेन हमने बनाया ये जी, और 1 महीने में काफ़ी उसका ट्रैक्शन चालू हो गया था, लोगों ने यहाँ पे अप्रिशिएट होना चालू हो गया था। हाँ। तो जो UID फेम के RS शर्मा जी थे, वो दिल्ली में IT सेक्रेटरी थे मेटी में। उनका फ़ोन आया एक दिन, कहते राजेश तेरा लॉकर चुरा लूँ। मैंने कहा सर चुराना क्या, मैं आपके पास भेजता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि आप इंडिया में यूज़ करना चाहते हो। जी। मैंने कहा सर कल ही मेरा बंदा आ रहा है दिल्ली, सो आई सेंड वन कोडर विद ए पेन ड्राइव विद द एंटायर सोर्स कोड, और उसमें मैंने महाराष्ट्र सरकार का लोगो चेंज करके भारत सरकार का वो जो एम्ब्लेम है वो लगा दिया। वेरी नाइस। तो उनको रेडीमेड कोड दिया। मैंने कहा सर जो चेंजेस आपने करनी करिए, तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप इसको ऑल इंडिया स्केल अप करना चाहते हो। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एंड आई एम सो हैप्पी कि इट हैज रियली ग्रोन। आज 50 करोड़ से ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। सो इतनी जल्दी कैसे बना है महाराष्ट्र में? हाउ डिड यू इनेबल दैट? हाउ डिड यू फाइंड द राइट पीपल, राइट रिसोर्सेज एंड काइंड ऑफ पुट दिस इनटू एक्शन? देखो, मोटिवेशन हो तो सब कुछ होता है जी। आपने फेसबुक की कहानी सुनी होगी मार्क ज़करबर्ग की, हाँ, कि उसने फेसबुक कैसे बनाया था। बिल्कुल। वो लड़कियों की रेटिंग करा रहा था यूनिवर्सिटी में, और उसने फ्रैंकली फेसबुक का जो कोर है, जो आज भी कोर है, वो एक रात में लिखा था। बेसिक कोर तो किसी भी सॉफ्टवेयर का बहुत छोटा सा होता है। तो सीरियसली हमने 1 हफ्ते में बना के लॉन्च कर दिया था अपने सर्वर्स पे। अच्छा। सो व्हाट वर सम ऑफ द डिजाइन प्रिंसिपल्स कि व्हाट विल दिस डू, व्हाट विल इट नॉट डू? क्या था इनिशियल जो प्रोटोटाइप बना, उसका अगर आप बता पाएं तो। देखिए, उस टाइम एक तो ये था कि आधार काफ़ी हो चुका था कंट्री में। आई बिलीव उस टाइम तक 40 करोड़ का तो हो गया होगा जब हमने डिजी लॉकर बनाया। आई थिंक महाराष्ट्र में 7-1 करोड़ हो चुका था। जी। तो सो आप सिंगल आइडेंटिटी से अंदर घुसो, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करो और कंसेंट बेस्ड शेयर करते जाओ। तो ये था कि कोई भी आपने फॉर्म भरना है, उस पर अगर सिटीज़न का फॉर्म पूछेगा भाई आधार नंबर है, तो बंदा अपना आधार डालेगा और उसका सारा डेटा कंसेंट बेस्ड उधर से फिल होके आ जाएगा। ओके। आज भी कोर प्रिंसिपल तो डिजी लॉकर या वही है, मोस्ट ऑफ द ऑटो पॉपुलेशन ऑफ फॉर्म्स का वही चल रहा है। करेक्ट। आपका एक आर्टिकल था जिसमें मैंने पढ़ा, जिसमें लिखा है कि यू डोंट वांट इट टू बिकम लाइक अ डम स्टोरेज यूनिट। व्हाट डिड यू मीन बाय दैट, एंड हाउ कैन दिस नॉट बी अ डम स्टोरेज यूनिट? हाउ डज दैट ट्रांसलेट? देखो, अभी तक जो हमने बात की वो डम स्टोरेज की ही बात की। हाँ। कि हमने स्टोर कर दिया, या आज तो मतलब सभी डिपार्टमेंट्स पे बंधनकारक है कि आप पुश भी करोगे। कि CBSE ने 10th का रिजल्ट निकाला तो वो मार्कशीट वगैरह सर्टिफिकेट पुश करेगा लॉकर में। एंड कई चीज़ें आप पुल करते हो कि मैं अपने लॉकर में गया, ड्राइविंग लाइसेंस मुझे है, आई पुल फ्रॉम दैट ड्राइविंग लाइसेंस वेबसाइट। तो सो दिस इज स्टिल डम स्टोरेज। पर एज द लॉकर ग्रोज, एज इट गेट्स मोर एंड मोर सर्टिफिकेट्स इन, and if we can club the scheme guidelines eligibility criteria along with it, जो मैंने अपने एक पेपर में एग्जांपल भी दिया है जी, कि डिजी लॉकर को पता चला यार आप 10th क्लास की लड़की हो, मैट्रिक में हो, आप SC में हो एंड ऑल दैट स्टफ, तो डिजी लॉकर ही आपको बोलेगा अरे बेटा अभी स्कॉलरशिप का फॉर्म खुल रहा है और तुम एलिजिबल हो, तुम्हारा फॉर्म भर दूं क्या मैं ऑटो पॉपुलेट करके, और जो 2-4 फील्ड मिसिंग है जो डिजी लॉकर में, वो भर देना उसमें। So then it becomes smarter and entitlements की बात हो गई. So it tells you about your entitlements, right, and helps you in getting those entitlements. प्रोएक्टिव सर्विस डिलीवरी में एक तरह से हेल्प कर सकता है। आज हम महाराष्ट्र में उसी को महासारथी बोल के लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, क्या है थोड़ा बता सके फॉर आवर व्यूअर्स, व्हाट इज महासारथी? महासारथी ये है कि हम सिटीजन्स को बेसिकली, पीछे बैकग्राउंड में आधार भी है एक उसका इनिशियल ऑथेंटिकेशन के लिए, उसको महासारथी की एक ID देंगे और उसमें उसका प्रोफाइल बिल्डअप होता रहेगा। ओके।
तो आई होप कि हम 15 अगस्त तक अच्छे से उसको लॉन्च कर पाएंगे। और वो आपको एग्जिस्टिंग स्कीम में आप कौन सी लाभ दे रहे हो ले रहे हो उसका भी बताएगा। तो मैंने तो अपनी टीम को बोला है, अगर एक आधा गलत लाभ ले रहा है वो भी रेड फ्लैग कर देंगे, बेटा तो ये गलत ले रहा है, एक तरफ तो इनकम टैक्स भर रहा है, एक तरफ तो ये लाभ ले रहा है। देन इट विल आल्सो टेल कि ये आपको लाभ मिल सकते हैं। एंड लाभ में दोनों चीज़ें यार, एक तो सर्विसेज जिसको हम बोलते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर लिस्ट में नाम डालना है, दूसरा स्कीम्स का लाभ, वेलफेयर स्कीम, स्कॉलरशिप चाहिए और कुछ चाहिए, तो वो दोनों तरह की चीज़ें बताएगा। कि बच्चा 16 ईयर्स का हो गया, 18 का हो गया, वो कहेगा यार तेरा सब कुछ है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, क्या बना दूं क्या? सो बेसिकली यूजिंग ऑल द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, जो सिस्टम जनरेटेड इंफॉर्मेशन है ऑफ द गवर्नमेंट, वी ट्राई टू प्रोवाइड प्रोएक्टिव एज मच एज पॉसिबल। आजकल तो हम एजेंटिक एआई की भी बात कर रहे हैं, सो वी आर रियली वर्किंग विद सर्वन नाउ, सॉवरेन एआई है, तो इस पे मैं दोनों तरफ से एआई एजेंट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। वन इज फॉर सिटीजन्स, सिटीजन उससे अपनी भाषा में बातचीत करके फॉर्म भरवा लें सर्विस का या स्कीम का, और जो बैकग्राउंड में जिसने अप्रूव करना है वो एजेंट, उनका एजेंट अलग होगा, वो उनकी हेल्प करता रहे, यार इसके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, ये है वो है, तो सो दे डोंट आस्क अननेसेसरी क्वेरीज। करेक्ट, उन पे एक चेक भी बैठेगा। आई थिंक इस सबसे ट्रांसपेरेंसी एक वो है, एंड दूसरा इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर्स विल बी रिड्यूस एज मच एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ द बेनिफिशियरीज जो आप बता रहे हैं। एब्सोल्युटली। और इसमें हम जैसे लॉट ऑफ पीपल टॉक ऑफ डैशबोर्ड्स फॉर द सीनियर मैनेजमेंट, राइट? सो आई इन्वर्ट दिस एंड इन ऑल माई इंटरनल मीटिंग्स आई से कि ये डैशबोर्ड शुड बी फॉर द अवर लोएस्ट फ्रंटलाइन वर्कर, कि हमारे पटवारी ने इनकम सर्टिफिकेट देना है। एक्चुअली टुडे वी आर नॉट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली टू पटवारी और तलाठी। और अगर सिटीजन का प्रोफाइल हम इधर बिल्ड कर रहे हैं, तो पटवारी को इनकम सर्टिफिकेट इशू करने के लिए जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंक्लूडिंग रेड फ्लैग्स, करेक्ट, तो वो उसको अवेलेबल होंगे, तो ही विल गिव ए मोर लॉजिकल करेक्ट सर्टिफिकेट, ही विल मेक लेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर्स। ऐसे आंगनवाड़ी वर्कर को भी, दे आर द वंस जिनको वेरी सिंप्लीफाइड डैशबोर्ड्स एंड वो अवेलेबल होना चाहिए। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि मेरे दिमाग में भी यही था कि टिपिकली डैशबोर्ड्स आर यूज्ड फॉर कास्केडेड रिव्यूज ओनली, कि भाई और सीनियर ऑफिसर को बताने के लिए या पॉलिटिशियंस को बताने के लिए। एब्सोल्युटली। बट द फैक्ट दैट इट्स एक्चुअली फॉर द फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड सो दैट दे कैन डिलीवर देयर वर्क इन अ बेटर मैनर। वेरी प्रोफाउंड। आपने आई थिंक जो आपने आर्टिकल मेंशन किया वहाँ पे आपने ये भी बताया है कि डिजी लॉकर है, आधार है, ई-केवाईसी है, ई-साइन है, these are all complementary blocks. Can you explain a little bit कि how are they complementary to each other and what kind of system were you visualizing when this was being done? देखो अभी साइलेंटली बाय डिज़ाइन और बाय कोइंसिडेंस पिछले 15 साल से एक तरह से लीगो ब्लॉक सेटअप हो रहे हैं, जिसको आजकल हम डीपीआई बोलते हैं, करेक्ट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। शुरुआत तो पहली आइडेंटिटी तो एक्चुअली वोटर लिस्ट बनी। आई हैव बीन लकी टू बी एसोसिएटेड विद दैट, वोटर लिस्ट एंड एपिक कार्ड, एंड एक्चुअली वी हैड डेटाबेसेस एटसेट्रा आल्सो। इट वाज नॉट ओनली कि मैनुअल प्रिंटेड वोटर लिस्ट है और हाथ में लैमिनेटेड कार्ड्स हैं, देयर वर डेटाबेसेस बिहाइंड दैट लकीली, बट दैट वाज लिमिटेड टू 18+ काइंड ऑफ पीपल एंड वोटर्स ओनली। सो पहला ऑब्वियसली डिजिटल आइडेंटिटी प्रॉपर बेस्ड ऑन बायोमेट्रिक डीडुप्लीकेशन आधार बना देश में, एंड क्वाइट ईजी टू यूज़। मल्टीपल मेथड्स, आप मोबाइल पे OTP से कर सकते हो और आइरिस से कर सकते हो, फिंगरप्रिंट रख सकते हो, उन्हें 2000 रुपीज़ मशीन। आजकल तो सत्यापन ऐप भी आ गई है कि आप अपने खुद के मोबाइल पे चेहरा दिखा दो और आधार नंबर डाल दो, यू गेट सर्टिफाइड कि हाँ यही बंदा है। सो दैट इज़ द फर्स्ट डिजिटल ब्लॉक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, एंड इट्स यूज नॉट ओनली बाई गवर्नमेंट, पर आपने सिम कार्ड भी लेना हो प्राइवेट कंपनी से, बहुत सारी सर्विसेज today you use that digital identity. So that's the first DPI in the country. Second था कि अब इंक साइन करने की बजाय you should be able to sort of sign the documents electronically. उसके भी 2 methods हैं primarily. एक हम इनकम टैक्स वगैरह में डोंगल यूज़ करते हैं और पासवर्ड वगैरह यूज़ करते हैं, या आप अपना ई-साइन कर देते हो जस्ट आधार बेस्ड, करेक्ट, एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ डन यूजिंग OTP on your mobile link to Aadhaar. That's useful in many places. Including filling up the bank opening forms and so on. और इसी का एक पैरेलल कंपोनेंट है ई-केवाईसी, जो आज प्राइवेट कंपनीज को भी अवेलेबल है। सो यूज ई-केवाईसी टू कंफर्म द आइडेंटिटी। सेकंड था डिजी लॉकर बिकम्स योर सर्टिफाइड स्टोरेज बॉक्स, which actually pulls in data from lot of sources.
Now, if there are 10 recruiters, let us say Tata, Wipro, so many others, if they have to check your 10th certificate validity, that's very difficult for all of them. Or all of them, lakhs of such people, companies, they can't make APIs to CBSE board. Yeah. So here we have given the power to citizen कि DigiLocker में चले गया. No, citizen has the power to share it with whomsoever he or they she want. wants. Yeah. That has inverted the whole script. तो वो था एक document sharing का हो गया. Correct. And third and big one was then Jandhan and Aadhaar. UPI. Yeah. So आपका बैंक अकाउंट है, पेमेंट सिस्टम्स हैं, पेमेंट गेटवेज हैं, और UPIs. जी. Luckily even today free for the citizens. एक भी पैसा नहीं लगता ऊपर से. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में आपका MDR चार्जेस लगते हैं. बिल्कुल. So that simplified the payment layer. Correct. So these three layers basically, digital identity and certificate digital signing, then payment system and documents sharing system. I think that's the key digital public infrastructure. Right. Now obviously it's going to expanding through ONDC and other kind of rails. Right. On e-commerce and all. So, I think DPI, digital rails as they are called, I think are very powerful to enable such kind of public service delivery in a seamless manner. No, much more than public service, actually they are enabling private service delivery. फॉर एग्जाम्पल आपको गैस सिलेंडर लेना है प्राइवेट कंपनी से या कुछ भी करना है, यू यूज यूपीआई. इवन किराना से आपने दूध भी खरीद के लाना है, यूपीआई. So UPI is helping not only in public government services, but also much more in your day-to-day private interaction. Correct. The article that I'm mentioning, I'll also put it in the description below for people to read through. It's a very interesting read. एक उसमें phrase है which मैंने और जगह भी पढ़ा है उसको, but थोड़ा लोगों को समझ शायद ना आएगा, which is single source of truth. Can you explain the concept of single source of truth? In what context is that a phrase used typically, and what does it mean? जैसे एग्जांपल पहले दिया कि 10th क्लास का सर्टिफिकेट है, बिकॉज दैट्स अ की डॉक्यूमेंट फॉर एवरीवन. बिल्कुल. चाहे आपने डेट ऑफ बर्थ प्रूव करना हो, एजुकेशन बताना हो, या बहुत सारी चीज़ों के लिए आप MA हो कि नहीं, दैट डज नॉट मैटर. आप 10वीं पास हो, दैट मैटर्स. फॉर एग्जांपल इन पासपोर्ट एटसेट्रा ऑल्सो. तो अगर आपका डिजिटल है आज की डेट में, आई थिंक पिछले 15-20 साल के तो हैं, नॉट ओनली CBSE, ISC बट मोस्ट ऑफ द स्टेट बोर्ड्स. सो एक्चुअली द ओनली एंड सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ इज जो बोर्ड का सर्वर है. क्योंकि अगर मैं फोटो कॉपी इंक सर्टिफाई भी कर रहा हूँ, गजटेड ऑफिस से भी ठप्पा लगवा रहा हूँ, नोटरी से भी ठप्पा लगवा रहा हूँ, दैट कैन ऑल बी फोर्स्ड. करेक्ट. नाउ पीपल आर फोर्जिंग इवन printed copies and changing the names on Adobe Photoshop or through AI. Yes. So that is actually not trustworthy. So that's why in DigiLocker also we talk of multiple kind of documents. एक तो जो सीधा आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखा या CBSE का अपना रोल नंबर लिखा, वो वहाँ से ऑटो फैच होके आ जाए. करेक्ट. दूसरा है कि आपने डाउनलोड कर लिया विच इज डिजिटली टाइम्ड एंड स्टैम्प्ड by CBSE board or by passport authorities or driving license authorities. So that can be verified by the anyone who uses them. तीसरा है कि जो जैसे मेरी लेटर से IIT की डिग्री है 87 की, इट्स नॉट ऑन सर्वर पे नहीं है. तो आपने अपलोड करा होगा उसको. तो मैंने खुद से अपलोड किया है, बट ऑब्वियसली सामने वाला कहेगा ये तो फोर्स्ड भी हो सकती है. सो हाउ डू यू गेट इट सॉर्ट ऑफ स्टैम्प्ड? तो उसमें lot of my papers are actually on my hobby website egovernance.guru. Correct. And इसमें DigiLocker में भी I have given this idea and inspired by basically share market DMAT जो हुआ 90s late 90s में, जितने crores of shares, lakhs of companies, crores of shareholders. So luckily in 5-7 years the whole share market actually went DMAT paperless in late 90s. And because it's a valuable financial document, so that means the job was done very well. So I said कि companies like NSDL and many others, इसमें DigiLocker में I should be able to put my, let us say, IIT degree, which is old one, go to NSDL, pay maybe 200-500 rupees, whatever is their fees, tell them कि यार आप IIT से कंफर्म करके उसमें NSDL स्टैम्प कर दे कि वेरीफाइड बाय NSDL एज ऑन दिस डेट. देन इट बिकम्स मोर ट्रस्टेड, ऑलमोस्ट सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ काइंड ऑफ थिंग फॉर एवरीवन एल्स. यस. तो वो अभी तक नहीं हुआ. समहाउ दिस रिफॉर्म में टेक सम मोर टाइम, बट यू आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ कांसेप्ट ऑफ ट्रस्ट फैक्टर. वो भी थोड़ा बताएं. वो मेरे को बहुत ही फंडू सा लगा. दैट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग एंड वी आर ट्राइंग टू यूज इट इन महासारथी. अच्छा.
बताइए थोड़ा इसके इसी बारे में जैसे मैंने अपने 10th का सर्टिफिकेट या डिग्री हाँ। सर्टिफिकेट पुराना है विच इज हाँ। नॉन डिजिटाइज्ड, हाँ so I have uploaded that, an old document. But then let us say I apply for passport and they use my 10th certificate. So that means passport guys have done due diligence and approved my certificate. या So they have shown trust in my 10th class certificate. So in the DigiLocker or in whatever database, somehow this flag is done that this certificate has been sort of checked and authenticated by passport authorities. And if 3-4 authorities, more and more people start using by this thing, the trustworthiness of this certificate increases. Then for another service, whether it's private service or government service, let us say Tata is recruiting this fellow, Tata will say, okay यार इस पे पासपोर्ट मिला तो डिग्री फर्जी नहीं है, असली है. या गवर्नमेंट कैन से कि डिग्री असली है because it has been sort of verified by passport authorities or multiple authorities. या जैसे अपना लिंक्डइन पे है आप स्किल बोलते हो, नहीं एग्जैक्टली बिल्कुल मोर एंड मोर recommendations, पीपल से हाँ, कि हाँ यार ये है इस तो मामले लोग में, ट्रस्ट करते हैं उस पे. so your trustworthiness of that skill improves Yep. without any other actual Yes. authentic certificate. या आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग कांसेप्ट. लेट्स एंड आप बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में उसको अप्लाई करने का भी कोशिश की जा रही है. इसी पे I will give you one more example. जी जी I was talking to Bharat Taxi guys last week. So I said कि यार जब DPDP Act आ रहा था डेटा प्रोटेक्शन का, I was raising my voice on this. कि when we say कि data belongs to the person who generates the data. मैंने कहा ड्राइवर है वो ओला उबर पे, लेट अस से ड्राइवर हैज़ नाउ 5000 रेटिंग्स एवरेजिंग 4.8 एंड मैनी फीमेल पैसेंजर्स हैव गिवन हिम ग्लोइंग टेस्टिमोनियल कि रात को ये 12 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से लिया एंड इज़ वेरी सेफ एंड गुड ड्राइवर. उसकी ज़िंदगी की कमाई वो है. ही हैज़ नो अदर क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट. नाउ दिस गाय शिफ्ट्स कंपनीज फ्रॉम ओला टू उबर और वाइस वर्सा और टू भारत टैक्सी. सो ऑन दिस डेटा ओनरशिप, okay, Ola Uber का तो होगा ही, but it should be like joint ownership. This guy should be able to download his entire packet and and transfer port it it to Bharat Taxi. या वहाँ इसका रिकमेंडेशन मीटर 0 से ना चालू हो, सही बात है तो बिल्कुल. वो पूरा इधर आ जाए. करेक्ट अभी जैसे इनफैक्ट मल्टीपल AI मॉडल्स आ रहे हैं, इवन कमर्शियल वंस, जी. दे मोस्ट ऑफ देम आर एनेबलिंग यू टू download your chat history and port it into your this thing. करेक्ट I can download my chat GPT history, put into Claude, क्लाउड and Claude will then understand me right from day one. बिल्कुल. I don't start from zero. हाँ, अदरवाइज स्विचिंग कॉस्ट इज वेरी हाई. तो इस तरह की joint data ownership और ये सब भी होना चाहिए. बिल्कुल. So this concept actually will be very useful across lot of public as well as private services. करेक्ट. आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आई थिंक डीपीडीपी एक्ट में ये भी था कि जैसे थिंग्स लाइक राइट टू बी फॉरगॉटन एंड राइट ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ डेटा, ये सब आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स. सो आपने आई थिंक उस पर टच किया था ब्रीफली, सो आई वुड वांट यू टू इलैबोरेट अ लिटिल बिट मोर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ की एप्लीकेशन बेस्ड गवर्नेंस एंड द शिफ्ट फ्रॉम दैट टू एंटाइटलमेंट बेस्ड गवर्नेंस, जो आप बता रहे हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इनेबल नाउ थ्रू महासारथी एंड अदर इंटरवेंशंस. सो थोड़ा और बताएं उसमें कि व्हाट इज दैट शिफ्ट लुकिंग लाइक, व्हाट डू यू सी से जब ये हो जाएगा, हाउ विल एनी पर्टिकुलर सिटीजन इन महाराष्ट्र बी एबल टू अवेल एनी सर्विस और स्कीम? Okay, इसमें let me divide between जी public services and welfare schemes. करेक्ट. पब्लिक सर्विसेज में पहला जैसे आपको आधार चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, बिल्कुल इस टाइप की है. या अभी आजकल इंफॉर्मेशन चाहिए एग्रीकल्चर का, हम किसानों तक को लेके जा रहे हैं, कस्टमाइज्ड वेदर फोरकास्ट एंड ऑल. इसमें कि लोगों को कम से कम फॉर्म भरना पड़े, अवेयरनेस उनको इजी हो, दे शुड बी एबल टू चैट विद दिस थिंग. आज सुबह मैं अपनी बेटी से ऐसे गप्पे मार रहा था कि हम GPR ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं महाराष्ट्र में. ही सेड कि अच्छा आप ये तो कह रहे हो कि पासपोर्ट का फॉर्म सिंप्लीफाई कर दोगे या वट एवर. ही सेड आम आदमी तो कहता है मुझे यार अमेरिका जाना है, बताओ मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए. आपके बॉट ने ये कहना चाहिए बेटा पहले तो पासपोर्ट चाहिए, फिर वीज़ा चाहिए, फिर ये चीज़ चाहिए, और हर चीज़ के लिए ये सिंप्लीफाइड है. इनफैक्ट इसका एक अच्छा है कि ऑस्ट्रेलियन म्यूनसिपैलिटीज़ में काफ़ी है, या कंपनीज में भी होता है. एन एम्प्लॉय सेज कि फीमेल एम्प्लॉय सेज आई हैव बिकम प्रेग्नेंट, तो कंपनी का सॉफ्टवेयर या सरकार का सॉफ्टवेयर, म्यूनसिपैलिटी का सॉफ्टवेयर उसको बताए अच्छा आपको ये सर्विसेज मिलेंगी. आप को हम नोट ले रहे हैं, वी आर नोटिंग दैट यू आर 2 months प्रेग्नेंट और वट एवर. सो वन इज ए चैटबॉट और समवन विल स्टार्ट
asking you questions and helping you what should be the nutrition, when should your visits to gynec will be. So health services should kick in. If the female is working, वो उसको गाइड कर देंगे, यार ये मैटरनल छुट्टी ले सकती है, ये कर सकती है, these are your sort of perks or whatever. बहुत पर्सनलाइज्ड. So बोलो मेरी यार शादी हो गई, आपने इतना बता दिया सिस्टम को, हाँ. तो सिस्टम शुड टेल यू अच्छा कांग्रेस यार शादी हो गई, अच्छा तुझे राशन कार्ड में तेरी बीवी का नाम जमा करना है, ये करना है, वो करना है, अच्छा एलटीसी में भी डाल देता हूँ, तेरी सर्विस बुक में भी डाल देता हूँ. आज की डेट में 10 जगह करना पड़ता है. इवन इंडिया में अभी भी यार आपका एड्रेस चेंज होता है तो आप मतलब इट्स मैडनिंग यार. और सरकार में तो हमारा एड्रेस तो 2 साल बाद चेंज होता है. इट इज़ सीरियसली मैडनिंग. कहाँ कहाँ चेंज कराओ, कहाँ चेंज ना कराओ. तो ताइवान हैड गॉन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन. हाँ. ताइवान की होम मिनिस्ट्री मेंटेन्स ए सिंगल एड्रेस रजिस्ट्री. अच्छा. आप सिर्फ उसमें चेंज कर दो, सब जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा अक्रॉस द सिस्टम यार. चाहे वो बैंक हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो आपका, चाहे वोटर लिस्ट हो. और वहाँ एक्चुअली ड्यू टू दिस दे डोंट क्रिएट ए सेपरेट वोटर लिस्ट. अच्छा. बाय लॉ 18 और 21 days बिफोर द वोटिंग डे दे जस्ट फ्रीज द लिस्ट. इलेक्शन कमिश्नर एक सॉफ्टवेयर में बटन दबाता है, द पोलिंग बाउंड्रीज आर ऑलरेडी फिक्स्ड. ओके. तो जो उस पोलिंग बाउंड्री के अंदर जिसका एड्रेस होता है वो लोग उसकी लिस्ट जनरेट हो जाती है. पॉलिटिकल पार्टीज को चला जाता है बेटा ये पोलिंग बूथ वाइज ये लिस्टें हैं, बंदे को चला जाता है भाई इतनी तारीख को वोटिंग है और आपका ये बूथ है. तो सो दैट्स द रियल सॉर्ट ऑफ एंड टू एंड सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड हाउ टू यूज द होलिस्टिक सिस्टम्स टू सिंप्लीफाई सिटीजंस लाइफ. करेक्ट. नॉट ओनली फॉर पब्लिक बट फॉर ऑल प्राइवेट सर्विसेज आल्सो. बिल्कुल. आपने आई थिंक सर्विसेज के बारे में बताया, आप बताए थे स्कीम्स के बारे में भी. आई थिंक यू वांटेड टू लेट अस नो, तो वो भी थोड़ा बताएं. स्कीम्स का कैसे डिफरेंट होगा चीज़ें? स्कीम में भी देखो वन इज ब्रिंगिंग अवेयरनेस. जी. एज वी गेट मोर एंड मोर प्रोफाइल ऑफ द थिंग्स. जैसे स्किल्स में मैं इनिशियली कोशिश कर रहा था कि मोबिलाइजेशन एडवांस देते थे. जी. आई सेड यार मोबिलाइजेशन एडवांस तो हम उस प्रोडक्ट का देते हैं जो प्रोडक्ट गंदा हो, बिके ना, उसकी पब्लिसिटी करनी पड़ती है. जब देश में इतनी डिमांड है स्किल्स की तो हम कहीं तो चूक रहे हैं. तो लेट से झांसी में एक वेल्डिंग का कोर्स आ रहा है, तो वी शुड हैव डेटा, प्रायर डेटा कि हु आर द स्टूडेंट्स हु कुड बी इंटरेस्टेड इन दिस. तो अपना बॉट है, उनको SMS भेजे, व्हाट्सएप भेजे, उनको ऑटोमेटेड कॉल्स करे. स्पेशली फॉर डिजी लॉकर मतलब वन शुड बी एबल टू पुट इन दीज काइंड ऑफ विश लिस्ट ऑल्सो कि मैं वेल्डिंग का कोर्स करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ. जब भी वो चीज़ खुले तो सिस्टम शुड टेल हिम. बहुत बार प्राइवेट में भी हम टिक करके रखते हैं जी, जब ये चीज़ आएगी मुझे बता देना. हाँ. तो वो सरकार में वो चीज़ अभी भी नहीं है. राइट. तो वन दैट इज़ ऑन द अवेयरनेस पार्ट. या देन जैसे मैंने एंटाइटलमेंट की बात तो पहले भी की कि डिजी लॉकर गाइड्स की बॉस ये चीज़ों का भी लाभ मिल सकता है. बिल्कुल. एंड एज यू स्टार्ट कीइंग इन मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू और योर फैमिली, मोर एंड मोर स्कीम्स ओपन अप. राइट. तो ये एक्सपेरिमेंट अभी हम कई जगह कर रहे हैं. जैसे गढ़चिरौली में अभी 12 गाँवों में मैंने कहा सैचुरेशन करते हैं यार. 45 स्कीम्स हम लेके गए, लोगों से 80-90 क्वेश्चंस का फॉर्म भरवाया, फैमिली का, बाकी चीज़ों का. एंड वी वुड से कि यार तुझे ये 10 चीज़ें मिल सकती हैं, चलो इनके लाभ दिलाने की कोशिश करते हैं. सो इन लास्ट 2 months वी हैव बीन एबल टू, क्योंकि नक्सलिज्म के कारण दीज विलेजेस आर अनरीच्ड, हमने 11,000 फैमिलीज को भी एक्चुअली लाभ दिलवाए हैं बहुत सारे. राइट. सो इट इज़ जस्ट बेसिकली मेकिंग मैच मेकिंग मोर सीमलेस, taking away the friction, taking away information asymmetry. Correct. So that's it. Now shifting gears, so इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अभी आपका टेन्योर रहा है, तो थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि इलेक्शन रिलेटेड चीज़ें. I have to go back 20 years, yeah. So though it's 20 years back, but the conversation is relevant because in the country right now SIR is going on, wherein पूरा एक तरह से प्रोसेस से इलेक्टोरल रोल ऑप्टिमाइजेशन, रीचेकिंग एंड कुछ लोगों को डीरजिस्टर किया जा रहा है जिनके डबल हैं. ऑल दैट इज हैपनिंग. बट सिमिलर थिंग ऑल्सो व्हाइल यू वर देयर वाज अबाउट डुप्लीकेट नेम्स इन द इलेक्टोरल रोल. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रेड अबाउट दैट यू enabled at that time was fuzzy matching technique, when in the election database. So can you first of all tell ki what was the need to do that, and secondly what is this fuzzy matching technique that you enabled at that time? Okay, I joined election commission in I think September 2003. जी. उस टाइम
देश में इंटरनेट आ चुका था, पर वो डायल अप मॉडेम से डायल करते थे. जी. एंड इलेक्शन कमीशन हैड 2 Mbps लीज लाइन, जो उस जमाने में बहुत लग्जरी थी. आजकल तो अपन मोबाइल पे 5G पे भी easily touch many times 100 MB speeds also. And luckily we had databases spread across the states. और वो अलग अलग भाषाओं में थे, 14 भाषाएं थी इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड उर्दू. एंड लैमिनेटेड कार्ड्स लोगों को दिए हुए थे, वोटर कार्ड. सो एट द टाइम वी हैड 70 crore वोटर लिस्ट. ओके. एंड मे बी अबाउट 50 crore वोटर कार्ड्स. और वोटर कार्ड्स में भी आई थिंक आफ्टर 99-2000 सोनी के डिजिटल कैमरे यूज़ हुए थे. सो वी हैड डिजिटल फोटोग्राफ्स इन फ्लॉपीज एंड जिप ड्राइव्स एंड जो भी उस टाइम स्टोरेज मीडिया होते थे. रिमेनिंग अबाउट 30 crore फोटोग्राफ्स वर एक्चुअली सिर्फ लैमिनेटेड शीट्स 30 की बना के दे वर स्टोर्ड इन तहसीलदार ट्रंक्स अक्रॉस द कंट्री. सो दैट वाज द काइंड ऑफ स्टेट ऑफ थिंग्स. राइट. तो पहले तो हमने किया कि मैंने कहा यार उस टाइम इसको सेंट्रल कर लेते हैं और यूनिकोड पे लाते हैं. सो वी हैड द बिगेस्ट यूनिकोड प्रोजेक्ट इन द कंट्री. व्हाट इज यूनिकोड फॉर? यूनिकोड इज स्टोरेज सिस्टम है. पहले फॉन्ट बेस्ड होता था, जो आप मोबाइल्स पे बाकी चीज़ों पे ठीक से नहीं देख पाते. जी. दैट वाज बेसिकली फॉर प्रिंटिंग द रोल्स, नॉट रियली फॉर इलेक्ट्रॉनिफाइंग देम. सो हमने यूनिकोड में कन्वर्ट किया सभी. और हिंदी में एक्चुअली वी हैड 100+ काइंड ऑफ फॉन्ट्स बीइंग यूज्ड अक्रॉस द कंट्री. यूपी में चांदनी फॉन्ट यूज हो रहा है और कहीं कुछ हो रहा है, तो वो भी स्टैंडर्डाइज नहीं था. वो हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स लिखे, उनको सबको यूनिकोड में लेके आए. ओके. सो एट दैट टाइम यूनिकोड एक्सपर्टीज इन द कंट्री, वी वर एब्सोल्युटली टॉप नॉच इन द कंट्री. तो वो आ गया, तो इट एनेबल्ड देन अदर डेटा एनालिटिक्स. राइट. अदरवाइज टिल दैट टाइम सेंट्रल डेटा एनालिटिक्स इम्पॉसिबल. सो मैंने खुद से मुझे एक बार मतलब आफ्टर गैप ऑफ 14-15 years 87 में IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस से निकल के, सो आई गॉट रियली रियल हैंड्स ऑन population scale data. Very interesting. After 15-year Of gap. course. So I love to play with that data. तो उसमें हमने कहा उसको फिर DDUP के लिए भी यूज़ किया. उसके लिए now names are very fuzzy. I found कि अग्रवाल है. Agarwal was written in 38 different ways in English in the country. Wow. Including spelling AGERVEL. अच्छा. AGR AGER तो बहुत है. Single G double G बहुत है. Correct. My wife name Meenakshi. In Hindi it was written in 10 different ways. In English it was written in 10 different ways. बिल्कुल. और in Punjabi और in Tamil. Correct. तो सबका I found कि there was no solution by commercial players. Right. So I myself wrote some algorithms to have fuzzy matching. क्या होता है fuzzy matching? Fuzzy matching is approximate. If I write Rajesh Agarwal, Rajesh Kumar so Agarwal, all of those things will be Agarwal spelling is different. Got it. So all those we could match. Now these days we can match photographs also using AI in a fuzzy match. That time that was not there. Yes. So we used that, and for example, at that time I produced a list of 4 crores as sort of potential duplicates. Okay. So we did only house-to-house analysis of those 4 crore. Okay. Rather than 70 crores. Correct. So the effort was reduced dramatically. Of course. And in that we got 60-70% duplicates, which means 35% names could be removed. So it was a very concentrated soup. Yeah. So obviously we left out many. But deletion we did no wrong, because deletion was based on कि घर पे बंदा जाएगा तभी delete करेगा. बिल्कुल. कंप्यूटर पे बैठ के delete नहीं करेगा. सही बात है. So many duplicates are obviously left, but with maybe 10% of the effort we could remove lot of names. So that was a good achievement. और उससे बढ़िया मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 2004 का लोकसभा इलेक्शन आ रहा था मैं 2004 में. तो ऐसे मेरे दिमाग में आया कि यार, and that's a problem with Mumbai also, all major cities. उस टाइम I was living in D1/200 भारती नगर, न्यू दिल्ली. मैंने कहा एज ए सिटीज़न मुझे तो इतना पता है, मुझे राजेश अग्रवाल, मेरी एज 34 या जो भी थी उस टाइम कि मेल 34, और नीचे लिखा D1/200 भारती नगर दिल्ली. स्पेलिंग मेरी मर्जी के. आई डू नॉट नो कि वोटर लिस्ट में क्या स्पेलिंग है. करेक्ट. आई डू नॉट नो माई असेंबली. पहले होता है, अभी बहुत सारा ये होता था कि आप अपनी असेंबली ड्रॉप डाउन से चुनो, देन यू ट्राई टू सर्च योर नेम. बट इन सिटी यू डोंट नो योर असेंबली. अभी नारीमन पॉइंट में बैठा हूँ, डोंट नो माई असेंबली. करेक्ट. मैंने कहा ये है, तो मुझे तो मैप पे कंप्यूटर दिखाए. सो माई आउटपुट इज़ वेरी क्लियर कि सिटीजन ये डालेगा, मैप पे वो दिखा देगा राजेश अग्रवाल भारती नगर में ये 10-12 दिख रहे हैं, तुम कौन से वाले हो, ये फैमिली नेम्स दिख रहे हैं फजी मैचिंग करके जी. वो चुन लो, फिर आपको मैप पे दिखेगा कि बेटा ये पोलिंग बूथ है आपका,
वाओ तो देन आई आस्क्ड सीडैक, वो कहते बॉस इसमें तो 2-4 साल लगेंगे, 2-4 करोड़ रुपए लगेगा. हाँ सेम विद एनआईसी. हाँ देन समवन टोल्ड मी कि एक छोटी सी कंपनी मैपमाई इंडिया, वो कुछ करते हैं. अच्छा आई टॉक टू राकेश वर्मा ऑन फोन. हम्म वो कहते हैं हाँ सर, वो आपके पोलिंग बूथ स्कूलों में है, वो मैंने किया हुआ है दिल्ली का. जो नहीं होगा मैं मोटरसाइकिल पे भेज दूंगा, बंदा वो ले लेगा लैपटॉप. अच्छा और वो कहता है अपने फजी फुजी मैंने सुना बना रखा है, आप डेटाबेस लेके आ जाओ मेरे पास. अपन करते हैं. सो गुड़गांव और दिल्ली का डेटा हाँ हम लिया. हाँ वो शायद 17 लाख थे या जितने भी थे. करेक्ट आई थिंक 8,000 पोलिंग बूथ थे इन 2200 स्कूल्स और कॉलेजेस. इसमें 100-150 मिसिंग मिले, वो मोटरसाइकिल वाला करके ले आया. अच्छा So you won't believe, in 2 days the site was up and running. Site was दो up दिन and में? running in 2 days. वाओ People could use it. So it was country's first mashup of maps and databases. डेटाबेसेस ऑफ इलेक्टोरल फिर राकेश वर्मा कहते हैं यार पैसे. मैंने कहा यार ये तो टेंडर वेंडर के बिना हुआ है. एज ए पायलट मैंने कहा मैं 50,000 रुपये देता हूँ 1 साल के. कहते सर ठीक है, मेरा भी एक्सपीरियंस हो रहा है. So now MapMe India is a good company and we are proud कि we have a homegrown made in India kind of company. वेरी इंटरेस्टिंग तो इस तरह के those were interesting days. और इसी में मैं आपको बताऊं, जब काउंटिंग डे था हाँ और पोलिंग डे था, मैंने कहा यार अपनी साइट क्रैश ना कर जाए, ये सब मैशअप वगैरह किया. तो मेरी टीम ने गूगल का कोई हेल्पलाइन नंबर ढूंढा. 2004 की बात कर रहा हूँ. जी सो माई टीम ड्रॉप्ड एन ईमेल टू गूगल गाइज ऑन दैट हेल्पलाइन, हेल्प ईमेल, कि हमारी वोटिंग आ रही है, इसको रैंप अप कर दो प्लीज़. 2 घंटे में उनका जवाब आ गया फ्रॉम एन अननोन या person. Yes, we are happy you are using it. So at any time 50 lakh people can easily use it. Your maps will not crash, अरे वाह or your system will not crash. So when you are motivated, या all pieces fall together. या बिल्कुल बिल्कुल Then team is also motivated, they deliver. काफ़ी 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 इंटरेस्टिंग काफ़ी प्रोफाउंड. जो आपने बताया कि डीडुप्लीकेशन किया, तो जस्ट थोड़ा सा टेकिंग अ स्टेप बैक कि व्हाई डू डुप्लीकेट एंट्रीज एग्जिस्ट, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस एंड किस कारण से ऐसे हो सकता है. देखो वोटर लिस्ट में तो, क्योंकि अभी हॉट टॉपिक भी है, हाँ one is people don't delete their names. There is no incentive for a son to go to government offices or even to fill an online form to delete the dead mother or father's name. There is no incentive. बिल्कुल और वो होता है कि यार 5-7 साल बाद लिस्ट रिवाइज होगी, अपने आप नाम डिलीट हो जाएगा. दैट इज़ वन. दैट्स हाउ डेड नेम्स की अभी भी जो SIR में डिलीट हो रहे हैं ना, lot of them are actually names of expired people because lists were not pruned. ओके And second is कि let us say I move from Delhi to Bombay, or within Mumbai I move from one mohalla to another. I am a tenant. I don't know the election. I am moving house every 2 years, let us say. And in Delhi, Coimbatore, Mumbai, Navi Mumbai, Gurgaon, the velocity of movement is very fast. करेक्ट Maybe 20% population changes house every year. That's the kind of velocity which is happening. Elections happen once in 5 years. बिल्कुल तो यू विल वेट कि इलेक्शन के टाइम देखूंगा यार कहाँ रहता हूँ, उस टाइम देखूंगा. मैनी टाइम्स आप कहते हो यार मैं पुराने मोहल्ले में जाके वोट वो डालूंगा, डालूंगा, सही बात है. तभी क्योंकि लॉट ऑफ माई लिंक्स आर लिंक टू दैट एड्रेस. करेक्ट करेक्ट दैट्स अ वेरी नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी. सो इसलिए कम्युलेट हो जाता है कई बार, रॉन्ग एड्रेसेस एंड ऑल. बिल्कुल सो वोटर लिस्ट में एक्चुअल बदमाशी जो होगी वो बहुत ही मिनिमल होगी कि डेलिबरेटली एक बंदे ने अपना नाम 2 जगह डलवाया, कर लाया हो, हाँ या डेलिबरेटली डेड बंदे का नाम छोड़ा और उसको कोई भुनाएगा कि उसके नाम पे वोट डाल के आएगा. दैट इज वेरी मिनिमल. या मोस्ट ऑफ इट इज ऑफ द काइंड. पर स्कीम्स में यस डेफिनेटली. बिल्कुल स्कीम्स में दोनों तरह का होता है. जैसे मैं डिसेबिलिटी में था, हाँ तो बंदा व्हील चेयर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से भी ले लेगा, अच्छा स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम से भी ले लेगा, लॉयंस क्लब देने आया उससे भी ले लेगा, मल्टीपल सोर्सेज से ले लेगा. जी हाँ ये स्कीम में इनफैक्ट एसेट्स का भी हो सकता है. बिल्कुल वन वेल में बी शोन अगेंस्ट मल्टीपल schemes made बिल्कुल. from multiple schemes. MD So it's मेडिका से essential भी है, that हाँ databases talk to each other, Yeah. and this deduplication has to be like in routine fashion. रूटीन फैशन में रहना चाहिए. आई थिंक अनदर थिंग ड्यूरिंग दैट टाइम वाज द फोटो रोल. आपका जो प्रोजेक्ट था, सो उससे पहले फोटोज आपके इंटीग्रेटेड ही नहीं थे विद आपके इलेक्टोरल आईडीज.
So how did that idea came about, and इतने scale पे photos को करना, and वो कैसे, like how did that was again materialize? very very interesting. हाँ, अगर आज वो प्रोजेक्ट करना हो तो इजीली वो 200-400 करोड़ का प्रोजेक्ट बन जाएगा 2-3 साल का. अच्छा. But then we were innocent, motivated, and some people may not like it. Itna consultancies were not in work that time. We would think of things and do it. Of course. मोटे-मोटे DPR वगैरह नहीं बनाते थे. So that has both pros and cons. तो आइडिया यह है कि जब हम फील्ड पे जाके देखते थे, ऑब्वियसली पोलिंग बूथ में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स होते हैं और 8 कॉलम की टेक्स्ट की वोटर लिस्ट होती थी और 50% लोगों के पास आइडेंटिटी कार्ड इलेक्शन कमीशन वाले होते थे. बाकी एक लंबी लिस्ट होती थी, आई थिंक 13 डॉक्यूमेंट्स की, कि ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ या आप राशन कार्ड ले जाओ एंड ऑल. तो फील्ड में जाते थे तो ये दिखता था कि लोग परेशान हो रहे हैं और इससे कई बार ऑब्वियसली इम्पर्सोनेशन भी होता है. ऑफ कोर्स. तो हमने सोचा कि यार 70 करोड़ की वोटर लिस्ट है, 50 करोड़ एपिक कार्ड दे चुके हैं उस टाइम, 2003-4 की बात कर रहा हूँ, जिसमें से 25 करोड़ फोटो डिजिटल हैं, 30-40 करोड़ तहसीलदारों के ट्रंकों में लैमिनेटेड शीट्स हैं. तो देखते हैं कि कैसे होता है. सो वी टुक ए पायलट इन हरियाणा एंड केरला एंड उसमें इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. और 6 महीने में वी रैन थ्रू कर्नाटक, हरियाणा एंड केरला, एंड वी कुड पुट probably 70% photographs in these two states. Okay. But it was very interesting. जो डिजिटल भी थे, मतलब 5-6-7 साल पुराने थे उस टाइम. आई थिंक सीडीज भी नहीं थी उस टाइम, फ्लॉपीज होती थी छोटे साइज की, बड़े साइज की, कोई जिप ड्राइव्स होती थी, मैग्नेटिक टेप्स टाइप होती थी. तो कईयों को तो ड्राइवर भी नहीं मिले, ढूंढने पड़े चांदनी चौक में पुराने जाके या इधर उधर से और कहीं ड्राइवर्स मिले उनके, जो गैजेट्स होते थे कि उसमें वो घुसाएंगे, उससे डेटा बाहर निकले. करप्ट हो गया तो उसको ठीक कैसे करें, और फिर मैचिंग ठीक हो, ऐसा ना हो कि राजेश अग्रवाल के सामने वेंकटेश की फोटो लग जाए. बिल्कुल. उसके भी बहुत चांस थे जी. और फिर लैमिनेटेड शीट्स तहसीलदारों के ट्रंकों से निकलवाई, वो एक से 30-30 फोटो निकलती थी, उसका सॉफ्टवेयर लिखा, वो केल्ट्रॉन ने लिखा था. अगेन दिस होल प्रोजेक्ट इन 6 months वी कुड sort of put 70% photographs from election commission. Officially, unofficially we had told the media कि यार अगर 1000 की वोटर लिस्ट है या 1200 की, एवरेज 600-700 फोटोएं हम डालेंगे उसमें. एंड डोंट ब्लेम अस टू मच अगर 5% गलतियां भी हुई. 30-40 फोटो, एक ही फोटो 4 बार लग गई या उल्टी सीधी लग गई, हाँ, फीमेल वोटर के सामने मेल की लग गई. दिस इज इनिशियल. ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को भी जाएगा, डिस्प्ले भी होगा, फिर रेक्टिफाई और उससे वो रेक्टिफाई करेंगे. थोड़ा शोर मचेगा, गलती है क्या है. हमने कहा वी विल टेक दैट फ्लैग, बट लेट्स रोल इट आउट. एंड फिर जैसे जैसे उसके बाद जो 2005 के बाद जो भी इलेक्शन होते गए, असेंबली इलेक्शंस, उसमें वो इंट्रोड्यूस करते गए. एंड बाय दैट टाइम आई थिंक 2009 लोकसभा इलेक्शन केम, majority of India had shifted to photo rolls. पूरा. So that had a good effect in many states. I won't name the states. जहाँ वोट डालने जाते थे तो आपको कहा जाता था आपका वोट तो गिर गया. फिर आप कहते मैं क्या करूँ, आप किसी और नाम पे डाल जाओ यार, जब आ ही गए हो तो. कई बार ऐसा होता था, बट इन सर्टेन पॉकेट्स. हाँ. इससे हो गया कि आपने एज ए वोटर आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी फ़ोटो है ही. पोलिंग एजेंट्स भी आपकी फ़ोटो देख सकते हैं. तो एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़ा कि फेयरनेस ऑफ इलेक्शन में, और सिटीजन के लिए भी इजी हुआ. बट एंड रिजल्ट मोर वाज कि इलेक्शन प्रोसेस में ट्रस्ट बढ़ा लोगों का. ने डेमोक्रेसी, दैट्स एक्चुअली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. I think to increase the voter turnout also, that needs to be established कि मेरा वोट मैटर करता है, and then there's trust in the election process. Absolutely. कि मेरा वोट दूसरा नहीं डालेगा, and all that stuff that matters. बिल्कुल. I think election related एक और interesting thing was delimitation of constituencies, and especially in current day and age when there's a lot of discussion around delimitation commission. So I think very relevant to talk about. तो पहली बात कि जिनको पता नहीं है, what is delimitation all about? क्या होता है delimitation and why is that needed? देखो, डिलिमिटेशन आज अगर अपने 140 करोड़ लोग हैं, हाँ, 110 करोड़ या जितने भी वोटर्स हैं उसमें, लेट अस से वी हैव 543 एमपीज. देश 543 हिस्सों में डेमोक्रेटिकली बंटना चाहिए जी, कि ऑलमोस्ट हर एमपी के इक्वल वोट हों. ऐसा ना हो कि एक के 10 लाख वोटर्स हैं, एक के 25 लाख हैं. और वो स्टेट्स में कहीं कहीं होगा. अगर मणिपुर की पॉपुलेशन ही 4 लाख है वोटर्स की, और एक एमपी तो देना ही है, तो वहाँ चार होंगे. तो दिल्ली के एमपी हो सकता है 25 लाख हो जाए, तो वो तो रहेगा. बट सो इट बॉइल्स डाउन टू कि विद इन स्टेट्स
इसका डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए। दैट इज़ वन। इसका बहुत इंटरेस्टिंग है यूएस में, जिसको जेरीमैंडरिंग बोलते हैं। इसका मैं क्या होता है? जेरीमैंडरिंग बोलते हैं उसको, कि अगर आप पोलिंग की एक इसकी असेंबली कंस्टिट्यूंसी या पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी कैसी होगी, यू कैन एक्चुअली एंश्योर विक्ट्री ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और ए कम्युनिटी। अच्छा। लेट अस से, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट अप, कि आपके 100 वोटर्स हैं, 60 पार्टी ए के हैं, 40 पार्टी बी के हैं, और 5 कैंडिडेट चुनने हैं, मतलब 20-20 वोटर एक कैंडिडेट चुनते हैं। तो यू माइट थिंक कि फेयर थिंग इज कि यार 60 वाले के 3 एमपी या एमएलए आए और उसके 40 वाले के 2 आए। नाउ विदाउट डूइंग एनीथिंग लेट मी ट्राई टू रिग दिस। इसका बंदे का 40 वाले का 2 की बजाय 1 आए और उसके 4 आए। तो मैं 20 के 20 वोटर जो बी पार्टी के हैं, वो 40 वाले बी पार्टी को एक कंस्टिट्यूंसी ऐसी बनाऊंगा टेढ़ी बेंगी कि वो 20 वोट उसके पूरे हों और वो 20-0 से जीत जाए। करेक्ट। बाकी जो इसके 20 वोट बचे, मैं बाकी 15-5 करके बाकी 4 कंस्टिट्यूंसी बना दूंगा, उसके 4 जीत पक्की। कुछ भी किए बिना। सो दिस इज द काइंड ऑफ रिगिंग विच एक्चुअली इज हैपनिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स। जो आप पढ़ते भी हो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का, दे आर चेंजिंग द बाउंड्रीज ऑफ द constituencies in this fashion. Luckily in our country we have been very lucky actually, right from 1952 when the first elections happened, that this process has been extremely fair. Correct. But जब 2001 की सेंसस के मुताबिक डिलिमिटेशन हुआ देश में आफ्टर 76 आई थिंक, yes, तब ये 2 फैक्टर्स थे। एक तो कि विद इन स्टेट एमएलएस की एमपीज की संख्या फिक्स थी, कि विद इन स्टेट बाउंड्री फेयरनेस आए। दूसरा, हम डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, तालुका बाउंड्रीज, इनको भी थोड़ा सा कोशिश करें कि एक तालुका एक एमएलए की में इसमें जाए। वो डिवीजन जितनी कम हो उतना अच्छा है। प्लस अगर बीच में पहाड़ नदियां हैं, वो हम कोशिश करें कि एक तरफ का एक के इलाके में जाए। सो या कई बार मंडी होती है कि एक लोग एक मंडी में जाते हैं, वो कहते हैं हमें उसी के साथ जोड़ो। रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी हो सकती है। करेक्ट। So taking in all these factors, very fair thing. So for the first time in 2004 delimitation process, we used GIS maps from Census of India. तो वो कैसे किया? तो सेंसस से पॉपुलेशन थी हर गांव की अपने पास, पीछे GIS की लेयर्स लगा दी, अपने पास तालुका और विलेज और ये बाउंड्रीज भी थी। Then we convinced all political parties that if we use these kind of maps, it will be very fair process. So we printed big maps for each MLA, MP constituency showing all the villages, नदी नाले, हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो आई थिंक जो हमने मैप्स इनिशियली फ्लोट किए, सिर्फ 2 कंस्टिट्यूंसीज में फाइन पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा, सबने मिलकर कंसेंसस से ये ऐसे ऐसे चेंज करो हल्का फुल्का। तो इट वाज ए वेरी साइंटिफिक प्रोसेस एंड ऑल। सो नाउ वी यूज GIS maps for so many things. अब तो आई थिंक embedded into the system. Yes. अब तो यार हर बंदा मोबाइल पे गूगल मैप्स यूज करता है। So आई थिंक बिकॉज डिबेट बहुत होती है इस पे, क्योंकि इलेक्शंस हैव टू बी फेयर एंड ऑल्सो बिकॉज दोनों चीज़ें, डिलिमिटेशन इज ऑल्सो एक स्कूल ऑफ थॉट है कि एक पर्सन का वोट शुड बी इक्वल टू अदर पर्सन थ्रू आउट द कंट्री, राइट। बट अगर जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, इफ द डिलिमिटेशन डज नॉट हैपन इन टर्म्स ऑफ कि कितने लोग कहाँ पर किस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट दे सकते हैं, so that will lead to this kind of a situation कि किसी का वोट कम आंका जा रहा है, किसी का वोट ज़्यादा आंका जा रहा है in terms of their impact on वो है। एक जिला बहुत बड़ा है लाइक जैसलमेर, बिल्कुल, तो उसके एमएलए एंड एमपी का भी कैपेसिटी है, कितना दूर के लोगों को करेगा। देयर वी विल हैव proportionately slightly more number than population criteria. yes बट एक अभी शिफ्ट जो होएगा, जब भी डिलिमिटेशन होएगा whatever फार्मूला, कि सेम नंबर ऑफ एमपीज और इंक्रीज नंबर ऑफ एमपीज, एक रूरल अर्बन शिफ्ट तो आएगा ही। देखिए पिछले 25 साल में 2001 की सेंसस पे हुआ था और अभी जो भी होएगा, लॉट ऑफ रूरल पॉपुलेशन अक्रॉस द कंट्री हैज शिफ्टेड टू अर्बन पॉकेट्स। सो अर्बन नंबर ऑफ एमएलएज एमपीज इज गोइंग टू इंक्रीज। So with the demography changes, this kind of a change will also occur. But उसी में जो फिर वही, जैसे मैंने जैसलमेर का एग्जांपल दिया, थोड़ा सा उसको वो नॉर्मलाइज तो करना पड़ेगा। करेक्ट। कि एरिया भी देखना है। मुंबई का छोटे से एरिया में एमपी एमएलए ने देखना है। बिल्कुल। एक कोई दूर दराज का इलाका है, ट्राइबल इलाका, वहाँ बहुत बड़ा इलाका, वो एमएलए एमपी नहीं मैनेज कर सकता, वो हल्का सा रैशनलाइज तो सरकारें करेंगे ही।
but I think very, very complex kind of a decision making process. It's not so simple and it's not black and white. Absolutely. Yeah, yeah, yeah. In fact, during Greek times, if you read Plato's Republic and all, डेमोक्रेसी आल्सो वाज कि अल्फाबेटिकली चुन लो यार सेनेटर्स या लॉटरी से चुन लो या वॉइस वोट से चुन लो या फिर सीक्रेट वोट से चुन लो मतलब डिफरेंट मेथड्स रहे हैं, डिफरेंट मेथड्स आर देयर बिल्कुल बिल्कुल वन कैन आर्ग्यू कि नो इलेक्शंस आर नीडेड एंड देयर कैन बी लॉटरी द लकीएस्ट पर्सन विंस सो हम लोग ने दो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, एक डिजी लॉकर एंड उसकी जेनेसिस स्टोरी एंड हाउ इज इट बीइंग यूटिलाइज्ड नाउ, एंड दूसरा इलेक्शंस के अंदर मल्टीपल इंटरवेंशंस ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम योर टाइम एट इलेक्शन कमीशन इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट. थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट आउट करना चाहूँगा मैं टू जस्ट टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस एंड बोथ द साइड ऑफ द स्टोरी, विच इज़ वन कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कुछ चीज़ें सम ऑफ द थिंग्स दैट वन शुड टेक केयर ऑफ, बिकॉज completely all the problems and it's not like a magic wand कि बस टेक्नोलॉजी लगाया and सब कुछ साफ हो गया. दोनों को हम डिस्कस करेंगे. तो over the years how has technology का utility for governance in your mind for governance has evolved from your early days to till now? Okay, in technology let me not focus only on IT. If we see civil works, yeah, a lot of government is civil works यार. Buildings हम बहुत बनाते हैं, स्कूल, आंगनवाड़ी और बहुत सारे ऑफिसेज हैं. फिर हम रोड्स बनाते हैं, सीवेज लाइंस बनाते हैं. सो देयर वन इज सिविल टेक्नोलॉजी इज रियली चेंजिंग. आरसीसी स्ट्रक्चर्स, अदर स्ट्रक्चर्स, यूज ऑफ स्टील एंड अदर आइटम्स, यूज ऑफ लाइट वेट मटेरियल्स, वुड की रिप्लेसमेंट्स इन बिल्डिंग्स, more eco-friendly buildings, prefab buildings now. Dharavi and many probably redevelopment. A lot of prefab buildings probably will also come up. So civil technology is changing. If you see, plumbing technology is changing thoroughly. Electrical now, air conditioning is no longer a luxury at all. And frankly, as the country grows, as the people start coming out of poverty to middle classes, air conditioning is the one thing which is dramatically changes. And in fact, my advice also is if anyone is looking into skills part, become a air conditioner technician. Seriously, I'm saying this with full seriousness. Right. So those things are changing. Then on the hospital side, if I see technology, we have gone through polio mukti and motiabindu, not mukti, but obviously much easier operations. Correct. So much better operation theaters in government hospitals. And then obviously technological use like Ayushman Bharat insurance scheme, etc. on the health sector. On the Anganwadi sector, obviously the hot cooked meal and lot of interventions that, including lot of centralized kitchens, technologically advanced kitchens. If you go to Akshay Patra kitchen, it's really बिल्कुल technologically advanced. अब रोटी बनाने वाली मशीन देखते हो जो 1 घंटे में 10,000 रोटी बना देती है. So this is actually good use of technology. IIT के उसमें भी मेस में भी वैसे सिस्टम्स लगा दिए गए हैं. तो as I remember from my time. Absolutely. So you see technology all around. जी. In education, obviously, the use of technology is very important. Right from more kits and more chemistry and physics labs, better labs, and then smart classrooms and so on. And then obviously we have talked about use of technology in delivering services and welfare schemes better. So now a lot of things are happening through drones, a lot of monitoring of roads, dam works, policing. जी. So a lot of that is there. I think 2 days back I was in Maharashtra. FDA is in the news. A lot of raids are happening on adulteration and that kind of stuff. Right. So I saw FDA labs. I went to police forensic labs, including mobile labs, how we are testing DNA, how we are testing narcotics. Right. Unfortunately, narcotics are on the rise. Now, Home Minister is also taking meetings for really just like we have been fortunately last 2-3 years, all state governments coming together, all central agencies coming together, almost got rid of Naxalism. Right. Similarly, if you all work together and using real technology, whether it's intelligence or busting these modules or catching these modules or testing them very properly and getting them convicted in courts. So technology is very important, and I hope using this country will be able to reduce the menace of drugs also.
right? Not all problems can be solved by just technology. So what are the things that you feel जहाँ पे technology अभी भी पूरी तरह से use नहीं हो सकती, and why do you say feel what is needed to be integrated with technology to kind of be a force of nature? See, I have been saying for many years now, last 15 years, कि technology comes later when we talk of e-governance. जी. कि पहले सहजता, पारदर्शिकता एंड विकेंद्रीकरण, which means things should be simple, intuitive. Correct. हमें बहुत सोचना ना पड़े कि कहाँ जाऊँ, क्या फॉर्म भरूँ, या जी. इट शुड बी इंट्यूटिव. पारदर्शिकता इट इज़ ट्रांसपेरेंट. जो भी सरकार करे ट्रांसपेरेंट हो. मैंने इसको लाभ दिया, इसको नहीं दिया, तो पीपल शुड बी एबल टू आस्क, यार इसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया. करेक्ट. या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे डिलिमिटेशन कर रहा हूँ. So it should be told to public in advance. That is पारदर्शिकता. विकेंद्रीकरण is कि यार frankly getting a thing offline at a village level is 100 times better than a online form which gets approved at central level with 5 steps. 100 times better. Yeah. So many times ऐसे है कि यार ये कर लो, फिर आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं है. या उससे ज़्यादा तो मैं कहता हूँ एलिमिनेट करो यार. हम कोई फॉर्म रखा है, क्यों मांगते हैं. जी. अगर महाराष्ट्र में बच्चे को जूनियर कॉलेज में 11th में आना है, हम 10वीं का डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्यों मांगते हैं. खासकर उस बच्चे ने जिसने 10वीं महाराष्ट्र से पास किया है, उसका डोमिसाइल मत मांगो. आप बोलो मैंने डोमिसाइल यार ऑनलाइन कर दिया, 3 दिन में दे दूंगा. दैट इज अनइम्पॉर्टेंट इफ यू कैन एलिमिनेट इट. बिल्कुल. तो पहले वो करो, फिर आप टेक्नोलॉजी यूज़ करो. अभी वही चीज़ AI पे हो रही है यार. बिल्कुल. एवरीवन इज टॉकिंग ऑफ AI. इवन इन प्राइवेट कंपनीज now people are realizing after burning thousands of dollars etc. यार प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी नहीं. People have started asking questions on that now. Many companies have actually put token limits on their staff. किससे ज़्यादा खर्चा नहीं करोगे AI पे, because प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज नहीं दिख रहा. So technology is not a magic wand as you said. तो जहाँ पे यूज़ करना है वहीं पे करो, पर पहले बेसिक स्टेप्स करो. बेसिक स्टेप्स करिए. उसके बाद अगर ज़रूरत है तो टेक्नोलॉजी लाओ. And with technology comes the burden of privacy, right? So how do you see that interplay? That's it. और एक और फैड आ गया आजकल. I keep telling my collectors and CEOs जिला परिषद meetings कि now many officers say कि मैंने ऐप लॉन्च कर दिया. That's not the solution. अगर सड़क पे खड्डे हैं तो सोल्यूशन है यार जाके खड्डे भरो. सोल्यूशन इज नॉट कि ऐप लॉन्च कर दो जो बताती खड्डा है. जितने में ऐप लॉन्च करोगे वो करोगे, उससे ज़्यादा सड़क पे खड्डे दिखते हैं. इट्स नॉट रॉकेट साइंस. तो वो करो. तो सो आई हैव बीन एक्चुअली सेइंग कि यार ऐप्स डिलीट करो, कम करो. जहाँ चाहिए वहाँ रखेंगे. सो वो चीज़ है. एंड एज यू सेड कि यार अभी डेटा प्रोटेक्शन का, दैट एक्चुअली वी नाउ हैव ए जनरेशन which does not know what privacy means. आजकल हर चीज़ लोग यार सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं. तो जब आप खुद सोशल मीडिया पे डाल रहे हो एवरीथिंग, तो प्राइवेसी की एक्सपेक्टेशन कहाँ रह गई. सो एक तो वो अवेयरनेस आनी चाहिए कि यार अंधाधुंध सोशल मीडिया पे हम अपनी फ़ोटो ना डालें, डेटा ना डालें. हर चीज़ में अपना उसको लिमिट करें, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे कुछ भी है, चाहे लिंक्डइन है, कि किसको क्या दिखेगा. करेक्ट. So we should be careful while putting anything on social media or internet. Internet never forgets. Yeah. We can pass laws, right to forget or whatever, right to be forgotten. आपके डेटा की इतनी कॉपीज होंगी इतने सर्वर्स पे, कौन डिलीट कर लेगा? You never know. सही बात. तो so it's for the citizen also to be careful, and then it is for government also to pass laws which are actually implementable. Yeah. तो अभी India is still at the initial stages, and then actually any law gets tested in courts, in police investigations. So maybe after 3-4 years we will know कि क्या कमी पेशी, and law will evolve actually. Correct. आपने एक आर्टिकल में कॉन्सेप्ट ऑफ eGov 0.0 बताया था, तो वो थोड़ा बताइए. दैट आई रियली कॉट माय आई. व्हाट इज दैट? क्या बताना चाहते हैं उसके थ्रू आप? मैं तो जैसे अपनी इलेक्शन कमिशन की बात है, 2003 से आई वाज वर्किंग ऑन पॉपुलेशन स्केल डेटाबेसेस. फिर 2009-10 से आधार भी शुरू हो गया था. आई अटेंडेड ए नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस इन 2012 समवेयर. तो वहाँ सुबह से मैं परेशान हो गया कि एवरीवन वाज सेइंग सोशल मीडिया की उस टाइम बहुत हाइप थी. 2012 में सब कुछ नया था, फेसबुक ये वो. तो बहुत सरकारी अधिकारी कहते थे मैंने फेसबुक पेज बना दिया तो दुनिया जीत ली.
So the whole referent till lunch time was कि this is what is called e-governance 2.0. तो मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया. तो जब मेरा नंबर आया 3-4 बजे, तो I said कि यार let's talk about e-gov 0.0 बेसिक्स की. तो जो मैंने अभी जो बातें की कि यार पहले ट्रांसपेरेंसी कर लो, ऑफलाइन एट विलेज लेवल इज 100x बेटर देन सो कॉल्ड e-gov 2.0 और सेंट्रलाइज्ड. तभी मैंने वापस आके फिर वो पेपर लिखा e-governance 0.0 जी, which is on my website e-governance.guru. So if you actually today look at it, तो it's almost like a Bible. करेक्ट. अगर उसमें मैंने 50 चीज़ें लिखी तो अभी तक 40 तो हो चुकी. जैसे उसमें मैंने पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स की बात की. मैंने कहा राशन कार्ड आपका बिल्कुल अक्रॉस द कंट्री चलना चाहिए. फिर मैंने कहा पुणे या मुंबई में लेटर से 10 सब रजिस्ट्रार्स हैं, 5 जगह पे रशिया या दूसरी बदमाशी है, तो सिटीजन को चॉइस होनी चाहिए वो अपने मोहल्ले से हट के दूसरे वाले में चला जाए. बिल्कुल. विच नाउ एक्चुअली इज एनेबल्ड इन महाराष्ट्र विद इन द सिटीज. बिल्कुल. अभी भी अक्रॉस सिटी नहीं किया कि लैंड वगैरह प्रेशियस से बदमाशी ना हो जाए. आप मुंबई में बैठे हो, आपका वर्धा का प्लॉट कोई नागपुर में जाकर रजिस्ट्री कराए और आप मुंबई में बैठे हो. बिल्कुल. अभी वो नहीं एनेबल किया, बट विद इन सिटी एनेबल कर दिया है. कल परसों मैं देख रहा था कि यार अपने माइग्रेशन हो रही है उस तोड़ी की बाकियों की, तो बच्चे और फैमिलीज मूव होती हैं, तो बच्चे को दूसरे ज़िले में आंगनवाड़ी का पोषण आहार मिलता है कि नहीं मिलता जी. देयर वी आर नॉट 100% गुड, वी आर अबाउट 70% गुड. मैं कल परसों उसका रिव्यू ले रहा था. तो 70 इज गुड बट इट हैज़ टू बी 100%. बिल्कुल बिल्कुल. बच्चा मूव हो गया तो कहीं भी है तो उसको आंगनवाड़ी में जाकर राशन मिलना चाहिए. बिल्कुल ठीक बात. हाँ, या स्कूल दूसरा चला गया, माँ बाप पूछ तोड़ी वाले हैं, दूसरे स्कूल में टेम्परेरी बैठना चाहिए या उसके लिए शाम को स्पेशल शाला होनी चाहिए, व्हाटएवर. सो दिस इज पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स. तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा e-gov 0.0 इज दिस यार. एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्स दिस. बंदा बीड़ से सतारा में आ गया तो सतारा की आंगनवाड़ी में सॉफ्टवेयर में वो बच्चा डिसेबल हो जाए और इधर एनेबल हो जाए. बीड़ में डिसेबल हो जाए 3 महीने के लिए, सतारा में एनेबल हो जाए. टेक्नोलॉजी अलाउज दैट. आयुष्मान भारत कार्ड प्रैक्टिकली यू कैन गो एनीवेयर इन द कंट्री एंड यूज इट. यू आर नॉट स्टक टू योर होम थिंग. इस तरह की कई सारी चीज़ें थी. सो e-gov 0.0 इन दैट सेंस इट स्टिल रिमेन्स ए वेरी वेरी वैलिड कंसेप्ट. बिल्कुल बिल्कुल. I think about technology, एक और aspect है which is access to technology in the first place, and because I want to also dig deeper into that because you spent time in the Ministry of Tribal Affairs, and that would have given you insight about far-flung areas also, right? And it's not only a tribal affairs but also in general there are remote areas, areas जहाँ पे either say cell towers नहीं है या फिर technology का access नहीं है, smartphone का access नहीं है. How do you see technology and these areas को connect करने का पूरा प्रतिक्रिया? So this is interesting. So I was joint secretary in tribal affairs in Delhi also, so I went around the country in very remote areas. जी. That was 2016-17. Correct. When the country had already crossed 2 big factors. Jio had expanded wildly in 2014-15, even in many remote parts. Correct. So 4G had gone to remote parts of the country, much more than anywhere else in the world. And then we had crossed a 6,000 rupees smartphone limit. Right. Xiaomi और इन सब के आ चुके थे, उस टाइम बहुत पॉपुलर थे. This keeps on shifting the company names. तो उस टाइम Xiaomi and all, they basically hit that 6,000 rupees sweet spot. कि उस पर आपको बेसिक स्मार्टफोन आ गया था जिस पे आप ऐप्स डाउनलोड कर सको और 3G 4G चला सको. That had really expanded the network. And then just before I joined here 7 months back, at 2 years I was in the secretary in the empowerment of persons with disabilities in Government of India. So that brought me another perspective. So when we go to remote parts, obviously somewhere we don't get network. Even today in Garchroli, Nandurbar, even in Kolhapur, 2-3 places, there are some sort of dark spots, right, where you don't really. So there we have to make exceptions. Yeah. कि यहाँ पे राशन शॉप पे आपको बिना अंगूठा रखे भी राशन मिल जाएगा. They should not be deprived. Right. दूसरा है obviously अगर गरीब आदमी के पास मोबाइल वगैरह नहीं है तो विद इन 2-3-4 किलोमीटर्स कोई असिस्टेड सेंटर होना चाहिए जो बहुत कम पैसे लेके आपकी असिस्टेंस दे. CSC टाइप का बेसिकली. जो CSC है अपने सरकार के अंदर जी. उस टाइप के सेंटर्स हैं. तो अभी ऑब्वियसली वो दिस प्रॉब्लम इज रिड्यूसिंग एज द टाइम पासिस. 4G 5G is increasing. Luckily data rates in India are low. And you have assisted access at reasonable rate. Now accessibility is more
for older people, for people who have visual disability. If Right. someone is blind, how does that person use even EVM or ATM or your mobile app or Google Maps? Or how does a blind person use Ola, Uber or Rapido बिल्कुल. without taking assistance from someone? So during those 2-3 years, I focused really on this. Right. I worked with lot of companies like Barrier Break of Mumbai and lot of others in making websites, mobile apps, POS machines, ATMs accessible to persons who are blind. We call that visual impairment. Right. Those who are deaf, who can't hear. How do they use technology which is voice based Yeah. and so on? Accessibility to all is what we are striving towards throughout these Absolutely. interventions. So any kind of deprivation in digital or even physical systems. Yeah, definitely. If an office is on second floor and someone is on wheelchair, there is no lift, so that person is denied that service. It may be private service or public service. So this should not happen much. I think काफी हमने discussion किया on technology. I would want to now also focus on your current portfolio. थोड़ा सा उस पे भी discuss करते हैं. Okay. Before going into certain personal aspects about you that we would want to discuss also. So, as the Chief Secretary of Maharashtra, can you tell us what are some of, what is the vision of Maharashtra as of today? What are we trying to achieve as a state, and what are some of the priority sectors and areas where we want to focus more upon for the say till 2030, 2035, and then towards the Viksit Bharat 2047? So as a very big picture, Maharashtra today is almost $600 billion economy. Right. We want to be, and we're absolutely sure we'll touch that by 29, $31 trillion, by 35, $2 trillion, and by 47, $5 trillion. We want to contribute that in India's $30 trillion economy by 2047. Right. So we have a Viksit Maharashtra 2047 plan, a Viksit Maharashtra 2030 plan. And also while we remain economic powerhouse and retain that position and cement it further, the people have to grow along with us, obviously, otherwise it's of no use. Right. The social inequity should not increase further, it should only reduce. People should be well educated, healthy, the infra should be good. So right now Maharashtra is in the news for one is quite a crazy infra expansion. Ji, of course. So in Mumbai we see Coastal Road, we see Atal Setu on the south, and we see bullet train Metro line. lines being built, Ji. metro lines actually operational, Right. Navi Mumbai airport actually operational, Ports, Bardwan port bilkul. on the Palghar actually Ji. sanctioned by GOI and our guys. India's first offshore airport near Palghar, announced by Honorable CM. Nagpur airport renovation by GMR guys. A lot of new dams being announced. So Samruddhi is changing things. Right. Delhi Mumbai freight corridor is on. Shakti Peeth is being sort of planned. Gadchiroli is becoming a steel city of the country. Right. For example, right now in Gadchiroli, Naxalism is over. We are saturating the villages with schemes, welfare schemes, and more than 1.5 lakh crore of private investment is already locked in. Wow. So that will have actually cascading impact on Chandrapur, Varda, and even up to Nagpur for ancillary industries and so on. So even our remotest areas are developing. Wow. Samruddhi will take development further to our Marathwada side also. And coastal roads. So on infra we are on the right track, and it's really happening like hell. It's Of course. absolutely at a crazy speed. Ji. And that is one. Second, cultural revival also. आता जो शिवाजी महाराजांचे 12 गड किल्ले आहेत, so 12 गड किल्ला basically military strategy folds of Maharaj Shivaji. Ji. So we are renovating that along with Government of India. Some are there, some are ours. So a lot of our museums, cultural places, Gorai Mangrove Walk and so on. So a lot of cultural revival things are happening, film festivals and so on. So then health system, education, we are really pouring in a lot of money there. And also Maharashtra being Maharashtra and Mumbai being the financial capital of the country,
So a lot of focus is on PPP projects monetization also. Monetization even at municipality levels of lot of stuff. Multiple kind of innovative kind of PPP models. So multiple kind of resource financing happening. So we are financially still lucky despite very big infra spree happening. जी. So yes, we are picking up loans, but we are careful on maintaining the finances well. Yeah. So luckily, and in GST, for example, GST collections, we are obviously at the top. At the top. But the second state is less than 50% of us. So such that is the such kind a of huge gap. difference. And we are maintaining that gap. In fact, our delta GST increase month to month is higher than national average increase. Oh. So we're not it's yet. not that we are slipping. हाँ. In data center, 55% to 60% of actual data compute is happening in Maharashtra. Right. And the kind of new data centers which are sort of locked in, that will maintain that lead. Pune is getting a lot of JCC traction now. Yes. So on all aspects, agriculture, yes, we are really helping the farmers also. So right now, whether it's loan waiver or electricity waiver, we are helping our farmers also, not only the industry. Even schemes like Ladki Behna and others, they sort of universalize a lot of DBT benefits. So there also, obviously, we are making sure that targeted deliveries there, leakages are less. But we're happy with the genuine Ladki Behna getting the lab. Right. So on the social welfare side, on the infra side, on the core health and education side, we are trying to ensure that all things go hand in hand. Right. And we are working very, very closely with Government of India. जी. Because Government of India is also on a industrialization spree and infra spree. So we are really working very closely with them on whether it's bullet train or NHI works or irrigation works or whatever. So we are in close touch with them. For example, last week you might have heard that central government and 4 states, Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, we had sort of our even legal cases going on against each other on Narmada Dam utilization. Correct. And payoffs. So last week or 10 days back, all CMs and signed that agreement in front of Home Minister Saab and Resolved the. and now we'll be getting our 10 TMC water and I hope in next cabinet or within next 1 month, will give approval to irrigation projects in Nandurbar district, Right. which is in SDG parameters the lowest in Maharashtra, unfortunately, at number 36. Right. And if we approve these and we are able to use Narmada waters in Nandurbar, that will be very, very transformative to Nandurbar district. So we are basically working on lots of fronts. Yeah, I think, and you being the linchpin as the chief secretary, how do you manage all of this? Because so many threads, so many projects, so many different departments, coordination, review. How do you manage all of It's these? very interesting. We have a dynamic chief minister, 2 Ji. deputy CMs and ministers, and our cabinet meetings are extremely productive. Then we have very seasoned officers in infra projects and also in social sector. Our young team of collectors and CEOs, Zilla Parshads and municipal commissioners, they are also delivering quite well. But we obviously have to supervise well, and I'm also trying to delegate a lot of stuff to secretaries and to divisional commissioners and down below. So that also helps. What is your leadership style like? If you ask my subordinates, many will say different things. But overall, yes, lot of after COVID that has become a norm. Lot of video conferences are happening. Right. But we try to resolve things. So in many meetings I say कि minutes पहले draft करके लेके आओ और जो changes हैं करके उसी time हाथ minutes issue हो. So decision making definitely becomes faster. And I also try to move to districts and in fact Dharavi, I think 2 months back I went incognito. अच्छा. I rang up a tourist agency. मैंने कहा मैं दिल्ली से टूरिस्ट हूँ, मुझे घूमना है. अच्छा. I made the payment obviously online. और मुझे गाइड ने घुमाया. मैंने अपनी गाड़ी पहले छोड़ दी. Wow. 500 मीटर पहले. So the 4 hours I went around totally incognito. Wow. लोगों से गप्पे मारी और किया सबसे like a tourist. तो पूरा then you get actually very different ground level view. जी reality समझ में आई आपको. And I stopped by when on tours. I randomly stop vehicle at a ration shop or a CSC or a
go down or an Anganwadi, and then you talk to people, and we actually learn lot of things. An Anganwadi worker tells me lot of things which otherwise does not come to me, and that helps us in improving the systems. बिल्कुल बिल्कुल. Or when you talk to people, let us say sitting in a सेतु केंद्र और in a तहसील ऑफिस, यार क्यों आए हो? कोई लोग कहते हैं कि मेरा तीसरा चक्कर है, मुझे ये नहीं मिला, या that kind of feedback, and then you improve the systems. Correct. So that helps. So, and in fact, I have told all my collectors and secretaries also कि यार आप field में जाओ, night halts करो. So many have started doing that also. Right. And the feedback on that from public as well as from officer themselves is very positive. आई थिंक रिक्वायर्ड भी है कि मतलब नॉट ओनली ट्रस्टिंग कि भाई जब जो रिपोर्ट होकर के आ रहा है उसी पे से भरोसा करके नहीं, फाइलें तो 10% कहानी भी नहीं बताते. कहानी जो फील्ड लेवल की फील्ड में बात करके समझ में आती है. जी बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन अराउंड योर करियर एंड अबाउट टेक्नोलॉजी. वांट टू नाउ डबल क्लिक ऑन यू पर्सनली. वांट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि is there any philosophy that you adhere to, any core philosophy, any book that inspires you, or any person that inspires you a lot? Yeah, I think see, I had a carefree childhood. जी. My dad was a lecturer in DAV College Jalandhar. जी. So middle class family background. So luckily my parents were not helicopter parents जैसे आज होते हैं. तो 8th तक तो पूरी मस्ती थी, कोई पढ़ाई का भी नहीं पूछता था. जब 9th में आ गए तो मम्मी पापा को चिंता हुई ये पढ़ेगा भी कि नहीं. बट लकीली आई डिड वेल. सो आफ्टर 10th आई वेंट टू DAV कॉलेज जलंधर जहाँ पापा पढ़ाते थे. वहाँ पे somehow maths and science clicked with me, and I topped the university and got gold medal etc. Right. तब मम्मी पापा को पहली बार लगा अरे यार ये पढ़ता है बच्चा. सीरियसली आई एम सेइंग इट विद फुल सीरियसनेस. तो 12th में भी वन डे मतलब तब ये था कि तब ये नीट और ये नहीं होता था CET वगैरह. ये था कि गोल्ड मेडल आ रहा है तो चंडीगढ़ में पैक है इंजीनियरिंग कॉलेज, उधर तो मिल ही जाना है. तो एक दिन पापा ने कहा यार कि कोई IIT का एग्ज़ाम भी होता है वो भर देते हैं फॉर्म. तो भर दिया. सीरियसली नो कोचिंग नथिंग, कुछ पता ही नहीं था. तो IIT में हो गए तो IIT दिल्ली में आ गए. सो दिस आर रैंडमली लाइफ टेक्स यू समवेयर. राइट. एंड आई हैड ए नाइस चाइल्डहुड. मतलब मोहल्ले में जाके क्रिकेट खेलते थे और करते थे. मूवी आई थिंक मैंने सिनेमा हॉल में एक ही देखी थी टिल 12th. अच्छा. जालंधर में लाल रतन सिनेमा होता था. दोज गाइज हैव नाउ ओपन लवली यूनिवर्सिटी इन जालंधर व्हिच इज वेरी फेमस. जी. तो IIT में आके लकीली आई स्टार्टेड गेटिंग NCET नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप ऑफ 200 रुपीज पर मंथ. दैट यूज्ड टू बी प्रिंसली सम दोज डेज. तो IIT में आके मैं हफ्ते में 2-3 मूवीज देखना चालू कर दिया. क्या बात है. उस टाइम शायद 1.5 रुपए की टिकट होती थी. सो एंड लकीली इन IIT दिल्ली also our hostel library was very good. So there I got hooked to science fiction books and so on. तो मतलब जो इस तरह के हॉबी शुरू हुई, मूवीज़ देखना. फिर IIT में म्यूज़िक सुनना चालू किया. किस टाइप के म्यूजिक? पंजाबी हिंदी म्यूज़िक भी चलता था. तो IIT में आके रॉक म्यूज़िक सुनना चालू कर दिया. क्वीन का, और वो मैं अभी भी पिंक फ्लॉयड और क्वीन पूरा अभी भी सुनता हूँ. क्या बात है. अभी ऑब्वियसली चेंज हो गया. पहले टेप रिकॉर्डर पे सुनते थे, अब क्लाउड से सुनते हैं. ऑफ कोर्स. बट आई लाइक म्यूजिक ऑफ ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स यार. सिमिलरली बुक्स, पोइट्री आई लाइक ऑफ ऑल काइंड्स. तो मैं कई बार अभी यहाँ भी चाहे कॉन्फ्रेंस में चाहे मंत्रालय की मीटिंग्स में आई कोट फ्रॉम सूफी सेंट्स, कभी रूमी से कभी किसी से, वो भी मज़ा आता है. अच्छा. सो रीडिंग भी आई रीड ऑलमोस्ट एनीथिंग यार. Now on YouTube also I would see almost random kind of stuff. तो आजकल मतलब YouTube यार एक आप AI का वीडियो देख लो, वो आपको AI के वीडियो थोपता जाएगा. वो तो पूरा आपका. किस दिन डॉगीज का देख लो तो वो 2-4 दिन डॉगीज के वीडियो ज़्यादा करता है. अनलेस यू देन से कि यार इसको फॉरगेट कर, अब बहुत हो गया. बिल्कुल. आजकल इनफैक्ट दैट्स वन फ्लिप साइड ऑफ टेक्नोलॉजी. रिकमेंडेशन इंजन चाहे अमेजन के खरीदी के हों, चाहे आपको यूट्यूब पे हों या पॉडकास्ट के हों, सिस्टम सॉर्ट ऑफ फील्स के आपको इस टाइप का पसंद है वो उसी टाइप का आपको दिखाता जाएगा. करेक्ट. अब जो सेरेंडिपिटी होता है कि जो अचानक कोई चीज़ मिली वो आपका कम होता जा रहा है. बिल्कुल. नया टाइप ऑफ कंटेंट आप नहीं ढूंढ पाएंगे बिकॉज ऑफ रिकमेंडेशन इंजन. करेक्ट.
आपको बीच में रीसेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका पूरा वो द सिस्टम इज कंट्रोलिंग यू. यस, दो यू फील यू आर डूइंग इट बट एक्चुअली द सिस्टम इज वेरी सेटली कंट्रोलिंग यू. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इवन योर रीडिंग हैबिट्स एंड लिसनिंग हैबिट्स. डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री? पहले तो यार जवानी प्रेशियस है. हैं? आप एंजॉय भी करो और फ्यूचर का भी सोचो. जी. वन इज एज आई सेड सम टाइम ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग आजकल थोड़ी ज़्यादा हो रही है. सो चिल्ड्रन आर स्ट्रेस्ड right from very young ages. So more than that, for younger children, so my advice to parents is कि don't do this to your children, let them enjoy their childhood. Even hobbies भी parents थोपते हैं कि स्विमिंग क्लास में लेके जा रहे हैं, चेस क्लास में लेके जा रहे हैं. वो बच्चे की इच्छा नहीं, वो मम्मी पापा की इच्छा है कि बच्चे को चेस सीखना है. तो बच्चे की इच्छाएं डेवलप होने दो, तो थोपो मत. Many children unfortunately are losing their childhood to their parents' aspirations. एक समय जो इंजीनियरिंग और डॉक्टर के लिए होता था, अब वो हॉबीज में भी हाँ, अब वो उस टाइप में शिफ्ट हो गया. तो लेट द चिल्ड्रन मूव आउटडोर्स आल्सो, वो चाहे फोर्स करना पड़े. चिल्ड्रन आर गेटिंग एडिक्टेड टू गैजेट्स. राइट. अनफॉर्चुनेटली इवन इन कॉलेज नाउ, इन कॉलेज हॉस्टल्स पीपल डोंट मूव आउट यार. एवरीवन इज स्टक टू देयर लैपटॉप्स और मोबाइल्स इन देयर ओन रूम्स. You are losing precious time there. Yeah. So move out with friends, enjoy social life there. And then life will randomly take you. But whatever you do, वो honestly करो. जो पढ़ाई करते हो उसमें चीटिंग मत करो. जो पसंद है वो पढ़ो. बिल्कुल. और उसमें don't get stuck to one discipline. Like स्टीव जॉब्स का बहुत फेमस है कि वो कोर्स कर रहा था, उसको कैलीग्राफी का एक जाता था जब कॉरिडोर में से, तो एक क्लास में कैलीग्राफी सिखाते थे. उसने वो कोर्स एनरोल भी नहीं किया था, उसमें जाके बैठ जाता था. बाई लूजिंग आउट ऑन द एक्चुअल क्लास ही वाज सपोज्ड टू डू. ओके. और जब मैकिंटोश आया तो पूरा पहले डीटीपी का तो उसने पहले क्रैक किया ना, बिकॉज दे हैड फॉन्ट्स व्हिच वर फिनोमिनली गुड फॉर प्रिंटिंग और फॉर डिस्प्ले. दैट हैपेंड बिकॉज ही हैपेंड टू वॉक इन द कॉरिडोर्स, सॉ ए कैलीग्राफी क्लास. एंड सो आप भी ऐसे काम करो जो आपको पसंद है. बिल्कुल. उस फील्ड में जाओ. एंड नाउ द फील्ड इज़ वाइड ओपन. हमारे टाइम इंजीनियरिंग और यही था, मेडिसिन या लॉ या कॉमर्स. नाउ द फील्ड इज़ वेरी वेरी वाइड ओपन. बट उसके लिए है कि आपका बेसिक आपने लाइफ अच्छी जी हो, अच्छी फ्रेंडशिप्स बनाई हो, बैड हैबिट्स ना इनकलकेट की हो, फिजिकल फिटनेस ठीक रखा हो. एंड मैं तो स्किल सेक्रेटरी भी था बिफोर दैट. तो उसमें जब एम्प्लॉयर्स का सर्वे होता है ग्लोबली, एम्प्लॉयर्स को पूछा जाता है कि व्हाट डू यू लुक एट. One is your basic thing कि how are you dressed, how are you speaking, are you rude or are you polite to people, are you punctual. These kind of things are extremely important rather than your skills. Correct. These things are important. Then many say जैसे land purchase करनी है तो what is the formula, location location location. अगर नौकरी ढूंढनी है तो क्या फॉर्मूला, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस. आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऑनेस्टली आप बात कर पाओ. देन आपने कितना पढ़ाई किया है, कौन सा डिग्री है, दिस विल बिकम मोर एंड मोर इररेलेवेंट इन फ्यूचर. क्योंकि स्किल्स तो आप ऑन द जॉब ही सीखोगे, नई नई टेक्नोलॉजीज आती जाएंगी, जल्दी से सिखाती जाएंगी. तो यू शुड बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग, वेल राउंडेड पर्सनैलिटी विद गुड फ्रेंड्स, गुड रिलेशंस विद योर फैमिली. थोड़े बहुत वाइज चलता है बट ज़्यादा ऐप भी ना हो, ज़्यादा बैड हैबिट्स भी ना हो. थोड़ी बहुत तो दुनिया में we need all kind of people in the world. Of course. If everyone is good, if there is no evil in the world will not exist. Very true, very true. I think very, very inspiring words for the youth. As we come to the last part of the podcast, we have a rapid fire round. So we have about 4-5 questions. So whatever instantaneously occurs to you is what we love to hear. The first question is, are you a morning person or a night owl? It depends on the seasons and the job and even my wife's mood. So today in this job, I am both a morning person and night owl. I can't help it. I have to wake up early and sleep late. As you mentioned that you were a movie buff after IIT. So which one is your favorite movie? Then it keeps on changing. एक दो movie के नाम I loved Inception. अच्छा. I love many science fiction movies. I love lot of comedies. Usually I don't see tear jerkers. I do see serious movies, but now many times old vintage movies also. During IIT, I was a big fan of Shami Kapoor movies. अच्छा.
And even today, I'm a big fan of not his movies but of his songs. जी, अरे वाह. Lovely. But I do listen to a lot of Sufi music also. अच्छा. Ghazals also. Ghazals. But then even Queen and Pink Floyd also. सब टाइप का बोल, all genre. Even Punjabi songs also. आप like, do you like to travel? Is there any vacation destination that is your favorite? I travel a lot. हाँ. So hill stations, yes, all across. Then offbeat things. Then seeing different kind of museums, etc. also. For example, I went to Nashik, तो मैंने कहा सरकार वाड़ा दिखाओ मुझे. Even collector and others did not know कि अरे यार सरकार वाड़ा क्या है. तो नागपुर गया तो एक अजब म्यूजियम देख के आया. अच्छा. So I do look for offbeat places also. Right. But mainly we end up going to hills. What is that one habit of yours that you have picked up in the services that your family finds very funny or very amusing, and maybe they have highlighted it to you, or maybe you yourself have understood that हाँ ये मैं करता हूँ. मेरे बच्चे तो हर चीज़ पे हंसते हैं, पापा ये ऐसे कैसे कर रहे हो. They laugh at everything. But मैं हर चीज़ जैसे शादी भी करनी थी, मसूरी में चीज़ थी. हाँ. तो इंजीनियर की आदत जाती नहीं है. हम लिखते थे यार प्रोज एंड कॉन्स लिखेंगे लड़की के. ये पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे. SWOT analysis. शॉर्ट एनालिसिस करेंगे. Lovely talking to you, sir. This was wonderful. I think will be very interesting podcast episode for our viewers. And thank you so much for taking out time for this episode. Thank you so much, Venkatesh and the entire team. Thank you.